coached the Mumbai cricket team and led them to a Ranji Trophy win, played in the Mumbai team through a Ranji Trophy win, and now he's the coach of our very own Indian physical disability team, who are now the world champions. It's with great pride and privilege that I welcome this first session of the Cricket Academy for Divyang, Mr. Sulakshan Kulkarni, sir. Sir, namaskar, good evening, and welcome to this academy. Thank you, Prasanna. Thank you. It's my pleasure. How are you, sir? How are you, sir? I'm fine. You can look at me. You can yes, see, you can see that. You know what I'm feeling? I feel कि आप actually dressing room में ही बैठे हैं और अभी आप कुछ वहाँ से tips देना शुरू करेंगे. So it's a great pleasure to have you, sir. And at about 5 o'clock, we've got an excellent participation of about 145 players who have joined in. So we must give full credit to them for joining in from all parts of India, sir. Yes, it is. It's a great privilege and great response. Yes. So Sulu sir, before we started, I just told everyone that this is the first session of our Cricket Academy for Divyang. और आज का जो session आप conduct करने वाले हैं, that is about batting and wicket keeping, which is your expertise. You have played as a batsman and a wicket keeper. You have coached so many people for some wonderful achievements in their life. So the first question that I would like to ask you, sir, to start today's session is, let's start with batting. What is it that you would like to explain all our players about the art of batting, especially from the perspective of physical disability cricket? Yeah. Good evening, friends. Good evening to everyone. Good evening, Sulakshan. Yeah. First of all, regarding batting, since we play physically challenged team or players, we generally play a T20 or T10. So obviously, the art of batting is to score runs. Whatever technique you have, आपके पास जो भी technique है, make sure in T20 you have to score. How to score, that is second part. But one has to score. To score, one has to have a proper technique. You can get runs sometime, but most of the time, if you don't have a reasonable technique for survival, sometime you may not score. So batting is all about getting runs, and to score runs, depend on the situation, depend on the condition, depend on the opponents, and it depends how you score. I can give you a few examples, of last year's while playing in the World Cup in England. At one stage, we are playing against Afghanistan, and the wicket was doing something. In English condition, as you know that, it does something. It seems, it swings around, and we were chasing 80 runs, only 80 runs of 20 overs, and we were 8 for 4 wickets. And at that particular time, someone had to stay on the wicket. So who can stay on the wicket? Though that person has a good technique, the temperament. Overs were not the factor, but someone had to stay on the wicket for some time. And that person, or Captain Vikrant Keni, who stood there for a while, and then after some time, he scored brilliantly to score 40 not out, and we were 80 odd for 4 wickets. So on that sort of wicket also, chasing only a small total, we require a technique to score or to sustain or to survive. For that, one has to have a basic technique. Yes, for you guys under T20 or T10, whatever matches or whatever type of matches you play, you have to score runs. But Prasanna, as I said, the main intention is for this particular PD cricket, they have to score runs. Sulu sir, so nicely explained. आपने अभी एक बात की कि when India was playing a match and chasing only 80 runs in 20 overs, तो अभी 20 ओवर में 80 रन अगर बनाना होगा तो वैसे तो इजी लगता है, बट जैसे आपने कहा कि English conditions, तो how important it is to adapt
to such different conditions. आप इंडिया में भी खेलोगे तो मुंबई की विकेट अलग है, बैंगलोर की विकेट अलग है, चेन्नई की विकेट अलग है, आप नॉर्थ में जाओगे तो चंडीगढ़ की विकेट अलग है. तो ये T20 क्रिकेट जो हमारे दिव्यांग क्रिकेटर्स खेलते हैं, इसमें अलग अलग कंडीशंस में अडेप्ट होना कितनी, उसके लिए क्या करना चाहिए बैट्समैन ने? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप जब इंडिया को रिप्रेजेंट करते हो, तो इंडिया को रिप्रेजेंट करना यानी हमने 130 करोड़ में से जो भी प्लेयर है उसमें सिलेक्टेड लोग ही सिलेक्ट हो रहे हैं इंडिया को, तो ऑब्वियसली वो बेस्ट 15 होंगे. सो बेस्ट 15 जो इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं उनके पास वो क्वालिटी होती है जो अडेप्ट करने की क्वालिटी होती है. करेक्ट. जो सिचुएशन में अडेप्ट कर सकते हैं, इसीलिए उनको सिलेक्ट किया है. यस. तो यस, तो बेस्ट, वी हैव सिलेक्टेड द बेस्ट, whether, and we expect that, or we expect them to perform best at any ground, any condition against any opponent. That's why we selected them. That is the main reason. And particularly जो इंग्लैंड है, इंग्लैंड का कंडीशन, स्विंग कंडीशन, सीमिंग कंडीशन, चेंज होता है. तो इस कंडीशन में लकीली we went there a week ahead to get acclimatized with the weather and seam condition and swinging condition, and we played 3 matches before our first tournament match. So that was a big advantage. We had a good practice session. We had one indoor session. Then we played 3 matches and we got acclimatized. All the players got the opportunity to feel the feel of that wicket, the bowler, batsman, how it swings. It matters the most, you know. And ये होने के बाद, when we played against teams, Bangladesh and Pakistan and all these teams, you know, the boys were so geared up. They were ready. They were ready for any challenges. The best part was they were ready for any challenges. That was the best part, because sometimes, you know, some people try to, you know, I'm not comfortable. I'm not comfortable against fast bowling. I'm not comfortable against spin bowling. थोड़े ग्रज करते हैं. लेकिन यहाँ पे ये टीम ने किसी भी इसमें ग्रज नहीं किया. And they went on. The opening batsman, we had Kunal Pandey. Hello, Prasanna, can you hear me? Yeah, we can hear you, sir. We can. Yeah. So we had a combination of opening batsmen like Kunal Pandey and Wasim from Jammu Kashmir, and we had a combination that one is aggressive batsman, the second one, Kunal, was a very correct batsman, compact batsman. So his job was to stay on the wicket, see the new ball through, and then play the shots. And Wasim was a brilliant aggressive player. You know, he could take the advantage of first 6 overs. That was the biggest advantage. And we had the players of lefty-righty combination as well. We sent Ravindra Sante was a left-hand batsman, then a right-hand batsman, and variety of all-rounders we had. And ये जो adjust करने का जो आपने जो बोला कि English condition में और वानखेड़े स्टेडियम और टर्निंग ट्रैक, जो प्लेयर अच्छा होता है, जो बेस्ट प्लेयर होता है, उसको पता होता है कि ये डिफरेंट विकेट्स पे एडजस्ट कैसे करना. उसका एडजस्टमेंट at higher level, you adjust your game. You don't change your technique. You adjust your technique according to the situation. Suppose, Prasanna, I'll give you one more example. After playing in India on a lowish bounce wicket, and when you go to South Africa or Australia, you get bounced, extra bounce. So in India, generally you tend to stay low. You know, tend to stay low at your stance, or because the ball is keeping low. That is the reason. Or even a wicket keeper. I'll come to that point next, you know, later on. But as far as batting is concerned, on India, South African or Australian wicket, you stand up, you stay upright. Correct. Because the bounce is there, so that you can play horizontal shots, cut and pull shots comfortably. Correct. So that is the adjustment you make, you know, at that level. So overall, it is a part of adjustment. Yes, absolutely. सर, अभी आप जब बता रहे थे तो आपने बहुत सारे वर्ड्स का यूज किया, जैसे अडेप्टेबिलिटी, एडजस्टमेंट, टेक्निक. अभी यहाँ पे हमारे जो क्रिकेटर्स हैं, द दिव्यांग क्रिकेटर्स हु आर नाउ जॉइनिंग इन टू दिस क्रिकेट एकेडमी फॉर दिव्यांग, उनको ये भी जानना बहुत जरूरी है सर कि सम ऑफ देम मे हैव अपर बॉडी डिसऑर्फॉर्मिटी और लोअर बॉडी डिसऑर्फॉर्मिटी और सम काइंड ऑफ एन इश्यू विद अ बॉडी पार्ट. तो ऐसे जब होगा तो एक ओपनिंग बैट्समैन के लिए या मिडिल ऑर्डर बैट्समैन के लिए टेक्निक में एडजस्ट करना, एक सिचुएशन में एडजस्ट करने के लिए क्या क्या करना चाहिए सर?
मैंने अभी ऑब्जर्व किया इस टूर पे, स्पेशली वर्ल्ड कप के टूर पे, इंडिया में ये प्लेयर खेले, इनका सिलेक्शन हुआ और ये फिर इंग्लैंड में गए। ह्यूज डिफरेंस है बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड कंडीशन में, जैसे हमने अभी लास्ट इसमें डिस्कस किया। वहां पे बॉल स्विंग होता है, इंडिया में उतना बॉल स्विंग या वाइट बॉल स्पेशली इतना बॉल स्विंग होता नहीं है। Yes. एंड आफ्टर सम टाइम, आफ्टर 6 ओवर तो बॉल स्विंग ही होता नहीं, बॉल तो सीधा सीधा आता है वाइट बॉल, सो दैट यू कैन गो, यू नो, उसको बोलते हैं हम लोग स्ट्रेट थ्रू द लाइन खेलते हैं और हम लोग रन मिलता है। तो Yes. वैसे भी अपने पास T20 में स्लिप, ये क्लोजिंग फील्डर तो होते नहीं है, तो आप सिर्फ बैट को लगाओ तो रन मिलते हैं। लेकिन इंग्लिश कंडीशन में आपको उस स्विंगिंग कंडीशन में आपको टेक्निक होना जरूरी है। Yes. इसके लिए ये जो प्लेयर थे, मैं एक एग्जांपल दूंगा। यहाँ पे हमारा वसीम से, अगेन जम्मू कश्मीर का ओपनिंग बैट्समैन, उसका फ्रंट लेग का प्रॉब्लम है, जहां पे उसको बेंड होने का प्रॉब्लम है। Okay. अच्छा, ओपनिंग बैट्समैन भी है, बॉल स्विंग भी होने वाला है, बॉल ब्रांड न्यू भी है और स्विंग भी हो रहा है, तो स्विंग तो खेलना है, अपने को बैट एंड पैड क्लोज खेलना है। लेकिन ये टेक्निकल प्रॉब्लम इसका है, ये इसका जो फिजिकल डिसेबिलिटी है, तो इसको हम कैसे एडजस्ट करेंगे? तो हमने एक आइडिया बनाया इसके लिए कि इंस्टेड ऑफ गोइंग टुवर्ड्स द पिच ऑफ द बॉल और टुवर्ड्स द बॉल, लेट द बॉल कम टू यू। तो बॉल वहां से आएगा एंड देन यू प्ले क्लोज टू द बॉडी इंस्टेड ऑफ गोइंग टुवर्ड्स द बॉल, बिकॉज ये जाने से आप स्विंग को स्कोप दे रहे हो। Yes. तो अगर ये बॉल यहाँ पे मीट करोगे तो भी वो 4 ही जाने वाला है, लेकिन यहाँ पे अगर दूर मीट करोगे तो देयर इज अ चांस ऑफ अ बिग बैट एंड पैड गैप एंड वो बोल्ड या लेग बिफोर ये हो सकता है। तो ये हमने एक छोटा सा एक एडजस्टमेंट किया उस कंडीशन के लिए। Wow. देन ये एडजस्टमेंट आपको आना चाहिए। किसी का हाथ का प्रॉब्लम है तो उसका बॉटम हैंड स्ट्रांग है, then he plays with a bottom hand. But then sometimes he takes that into advantage. He can play cut shot and pull shot very well. Correct. So I told them, you wait for that particular ball, apart from other balls, Yes. because as it is in T20, you don't get slips. Yes. Not too many slips. So you can just play the ball and you get runs. But whenever you get a short ball outside the off stump or leg stump, you can play to your strength. Yes. With a bottom hand. Correct. So ये भी एक tactics है. So you can play to your strength. Absolutely. And then जिसके पास है proper hands है, किसी का hands proper है, किसी का problem है leg का, then that particular batsman can use hand-eye coordination. Wow. Correct. That batsman can use hand-eye coordination. That Wasim was a terrific hand-eye coordination player with a great eye. He had a great eye, and with a hand-eye coordination, he had God-gifted timing. Oh. God-gifted timing. He would just time किया, लगाया तो सीधा मैदान के बाहर. Then a player like Suganesh from Andhra, he had a terrific timing with a hand-eye coordination. God-gifted timing. तो इसका ये जो प्लेयर का जो एडवांटेज है, ये एडवांटेज हम लोग को लेना चाहिए। एंड आपका जो स्ट्रेंथ है, और मैंने प्रसन्न, I'll tell you, I have seen many PD boys all over. Hubli, I have seen in Hubli, All India, Badlapur. इनके पास जो है वो कभी रोते नहीं है। सबसे बिगेस्ट मैंने अगर जिंदगी में अगर कुछ सीखा, हमारे पास सब कुछ है फिर भी हम रोते हैं। इनके पास कुछ नहीं है लेकिन फिर भी रोते नहीं है। इनके पास एक हाथ से है तो एक हाथ से खेलते हैं। इनका जो जिगर है, इनका जो एक ग्रिट है, डिटर्मिनेशन है, वो बहुत इंस्पायर करती है। Yes. और वहां उस लेवल से अप्रिशिएट करना चाहिए हम लोग उनको। इंस्पायर होते हैं इसके लिए कि अप्रिशिएट करना चाहिए कि वो एक हाथ से भी इंडिया खेलते हैं। Wow. Absolutely. That is something special. Absolutely. नहीं सर, आपने कितना अच्छा बताया कि play to your strength. And I think I would like to tell all our participants जो भी यहाँ पे सुलक्षण कुलकर्णी सर का ये जो टॉक सुन रहे हैं कि please try to note down all this information that Sulu sir is telling us. आप चाहिए तो एक बुक और पेन लिख के रह सकते हैं या ध्यान रख सकते हैं कि सुलू सर क्या बता रहे हैं, कि जितना अच्छा उन्होंने बताया कि play to your strength.
कुछ कम ज्यादा आपके बॉडी में होगा, बट इफ यू नो हाउ टू प्ले टू योर स्ट्रेंथ, देन यू कैन बिकम द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड. सो वंडरफुली एक्सप्लेन सुलू सर. एंड आप जब बता रहे हैं तो सुनने में भी इतना अच्छा लग रहा है. आई एम श्योर ऑल द पार्टिसिपेंट्स आर एंजॉयिंग. सर, आपने अभी बताया कि प्ले टू योर स्ट्रेंथ, कि आपके जो स्ट्रेंथ है उसको आप ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमाइज करो. आज हमारे पास जो प्लेयर्स हैं जो आज ज्वाइन हुए हैं, दे हैव जॉइंड इन फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया. एक प्लेयर सर ऐसे है जिनको शुरू करना है क्रिकेट, दे हैव स्टार्टेड प्लेइंग क्रिकेट, दे ड्रीम टू प्ले फॉर देयर स्टेट, दे गो ऑन टू प्ले फॉर इंडिया, दे ड्रीम टू विन अनदर वर्ल्ड कप, दे ड्रीम टू विन अनदर टूर्नामेंट फॉर इंडिया, दे ड्रीम टू प्ले फॉर इंडिया. पर जब वो क्रिकेट शुरू कर रहे हैं, वो बैटिंग होगी या विकेट कीपिंग होगी, तो उन्होंने कैसे शुरुआत करनी चाहिए सर? व्हाट आर द काइंड ऑफ ड्रिल्स दैट दे शुड डू टू गेट इनटू द ग्रूव ऑफ बैटिंग? ये जो बिगिनर्स है, इनके लिए मेरा मैसेज है कि आप पीडी क्रिकेट ही नहीं, शायद कुछ एरिया में इंडिया में ऐसा होगा जहां पे पीडी क्रिकेट का शायद नेट्स न हो, शायद टीम भी न हो, कुछ प्लेयर्स भी न हो, तो आपको शायद आपका टीम नहीं मिल सकता है. तो आप क्या वेट करेंगे टीम का कि जब टीम आएगा तब प्रैक्टिस करेंगे? सो नो, यू कैन गो टू द नॉर्मल टीम, यू कैन गो टू द नॉर्मल नेट्स, और वहां पे उनको रिक्वेस्ट करके आप उनको बता सकते हो कि प्लीज मुझे एक मौका दो खेलने के लिए. और आपका जो भी नेट्स है, वो जो भी कोच है, उनके पास जो उनका नॉर्मल जो क्रिकेट होता है, वो जो प्रैक्टिस करते हैं बेसिक से, वो प्रैक्टिस आप कर सकते हैं जो उनका नॉर्मल नेट्स होता है. तो फिर वहां पे जो कोच होंगे या टीम होगी या सीनियर प्लेयर होंगे, कैप्टन होंगे या सेक्रेटरी होंगे, तो वो कुछ तो आपको बताते हैं, ओके कि ऐसा खेलना है, वैसा खेलना है, और वहां से आप शुरुआत कीजिए. एटलीस्ट आपका गेम तो शुरू होगा, रादर देन आप वेट करने से मुझे जब पीडी क्रिकेटर मिलेगा तभी, ऐसा नहीं है. तो आप नॉर्मल क्रिकेटर्स के साथ खेल सकते हैं. इसका एडवांटेज ये मिलेगा आपको कि आप उनके साथ अच्छे खेलोगे तो ऑब्वियसली पीडी क्रिकेट में और अच्छे खेल सकते हो आप. यस. तो इसके लिए आप वहां से बेसिक चालू कीजिए, जो भी आपका क्रिकेट का बेसिक्स है, बैटिंग, बॉलिंग, नेट्स, ड्रिल्स, जो भी है. आज आपको यूट्यूब पे आपको सब कुछ क्रिकेट का बेसिक नॉलेज मिलता है. करेक्ट. सब कुछ है. उसके बाद अगर आप वहां पे नेट में जाएंगे, जो भी एसोसिएशन या क्लब या जो भी होगा, वहां पे जाके आप रिक्वेस्ट करके मुझे खेलना है, बस जो भी आपका बैटिंग बॉलिंग जो भी रहेगा, आप वहां पे ज्वाइन कीजिए. करेक्ट. ज्वाइन करने के बाद आप 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद कुछ तो सीखोगे, एक दूसरे को देखने के बाद कुछ तो सीखोगे. वहां पे एक्टिविटी होती है, वहां पे उनकी फील्डिंग की एक्टिविटी होगी, वहां पे वो लोग मैच खेलेंगे, और जैसे जैसे आपका गेम इंप्रूव होगा वैसे वैसे वो टीम भी आपको मैचेस में भी देंगे चांस. जैसे मैच खेलेंगे तो मैच में अगर आपने अच्छा टेम्परामेंट दिखाया, परफॉर्मेंस दिखाया, तो और नेक्स्ट ग्रेड पे जाओगे. एंड देन अभी अगर पीडी क्रिकेट का जैसा हमने ये एआईसीपीसी ने बहुत अच्छा काम किया रजिस्ट्रेशन का, तो आप अगर यहाँ पे रजिस्टर करते हो, तो रजिस्टर करने के बाद आपका लोकल, मान लो आप आंध्रा के हो, तो आंध्रा के लोकल हमारे जो एआईसीपीसी का ब्रांच है, वहां पे ज्वाइन कर सकते हो. वहां से आप थोड़े सेकंड ग्रेड में आएंगे, वहां पे आ सकते हो. हम लोग फ्यूचर में जाके हम लोग टैलेंट सर्च प्रोग्राम करने वाले हैं स्टेट वाइज. तो टैलेंट सर्च में ये भी प्रोग्राम हम लोग करने वाले हैं कि अंडर 19, अंडर 23 के बच्चों का भी टैलेंट सर्च करने वाले हैं. तो ये ऑल इंडिया होने वाला है. सो ऑब्वियसली हर बच्चा यहाँ पे हम लोग को देखने वाले हैं, तो आपको वो भी एक मौका है. लेकिन उसके पहले मेरा मैसेज है कि आप एटलीस्ट स्टार्ट करो क्रिकेट. यस, एब्सोल्युटली सर. कितना अच्छा आपने बताया कि शायद आपके एरिया में ऐसा होगा कि दिव्यांग क्रिकेट वहां पे ना हो, बट यू कैन गो टू अ नॉर्मल नेट में जाके आप रजिस्टर करवा सकते हैं और प्रैक्टिस करना चालू कीजिए. तो जैसे ही आप स्टार्ट करेंगे तब आप आगे बढ़ते जाएंगे. सर, गोइंग अहेड, यू स्पोक अबाउट टेक्निक, यू स्पोक अबाउट प्ले टू योर स्ट्रेंथ. लेट्स गो टू अ मैच सिचुएशन. एक मैच समझो हम खेल रहे हैं. It's an India team that is playing against, say, Pakistan or Afghanistan, and you have good team of 11 players, say about 6 to 7 batsmen, wicket keeper, and 4 bowlers. That's how the normal combination is. तो जो बैटिंग टीम है, how does it get ready? तो बैट्समैन को आप क्या बताते हैं? What is the difference while batting first and while chasing? क्या आप बताते हैं as a coach कि कैसे उसको adapt करना है? What are the things that you plan while going into a match? Okay. मैं आपको सबसे बेस्ट एग्जांपल देता हूं, अपना पीडी क्रिकेट का वर्ल्ड कप का फाइनल मैच. दैट इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर बैटिंग फर्स्ट. हमने एक टीम मीटिंग किया, और उस टीम मीटिंग में हमने ये बोला कि वी हैव टू स्कोर, वी हैव टू गेट 40 रन्स ऑफ फर्स्ट 6 ओवर्स. ओके, दैट इज सिंपल टारगेट. 36 बॉल 40 रन, रन अ बॉल प्लस
वाइड एक्स्ट्रा नो बॉल करके हम 40 तो मिलता ही है. ओके, यू डोंट हैव टू डू समथिंग एक्स्ट्रा. कोई सिक्सेस बाउंड्री मारने की जरूरत नहीं. यू हैव टू जस्ट टैप द बॉल एंड गेट 1 रन. तो ऑड बाउंड्री तो मिलने वाला ही है. दैट इज 36 बॉल 40 रन बट 0 और 1 विकेट. एंड पर्टिकुलरली जो दो बैट्समैन है, जैसे मैंने बताया कि वासिम इज अ एग्रेसिव बैट्समैन वेयर कुणाल फंडसे इज अ नॉर्मल ट्रेडिशनल ओपनिंग बैट्समैन. तो वहां पे हम लोग डिफाइन करते हैं रोल कि योर जॉब इज टू मेक श्योर कि यू स्टे देयर टिल द एंड, टिल 12 13 14 ओवर्स, सी द न्यू बॉल ऑफ, गिव स्ट्राइक टू मैक्सिमम टू दैट एग्रेसिव प्लेयर, रोटेट द स्ट्राइक, एंड हिज जॉब इज टू प्ले द शॉट्स so that we get our target. So उस मैच में ओके ये हो गया टारगेट. टारगेट 1 अचीव्ड. We scored exactly 41 runs for 1 wicket. Wow. Then Wasim got out. Then 6 to 12, that is partnership period. Next 6 over. You know, ये 20 ओवर में हम लोग उसको डिफरेंट इसमें डालते हैं कि ओके फर्स्ट 6, then 6, then 4 and then last 2. So next 6 over, our target was to get 35 to 40 runs without any wicket. Exactly वैसे हुआ. ये जो कुणाल फंडसे and रविंद्र सांदे, they played for another 6-7 overs for at they had 40 runs. And वहां पे कुणाल फंडसे 52 करके आउट हो गया 14th ओवर में. उसका रोल खत्म हो गया. अब हमारे उसको बोलते हैं हम लोग शार्प शूटर बोलते हैं. हमारे पास शार्प शूटर हमारे टीम में कुछ शार्प शूटर थे. 4 शार्प शूटर थे. तो आप किसको भी छोड़ो, उनका जॉब था शार्प शूटर, यानी लगाओ. यानी ऐसे ऐसे ऑलराउंडर थे प्रसन्ना, यू वोंट बिलीव इट, कि स्टेडियम के बाहर मारने वाले प्लेयर थे. तो एक छोटा एक 14th ओवर में जब आउट हो गया कुणाल, देन उसके बाद हमारे पास 4 शार्प शूटर में से एक शार्प शूटर को भेजा हमने, जो सुगणेश था. दैट टाइम आवर स्कोर वाज कुणाल, व्हेन कुणाल गॉट आउट आवर स्कोर वाज 100 for 2 विद सांते बैटिंग 140 ऑड. एंड उस टाइम सुगणेश बैटिंग को गया क्योंकि 8 विकेट्स इन हैंड विद ओनली 6 ओवर्स टू गो. वो सुगणेश को लाइसेंस फ्री था मारो किल करने का, मारो अभी. एंड ही इज वेरी फेमस, यानी उसके लिए तो फ्रीडम. तो शार्प शूटर को बोलेंगे शूट एट साइट सीधा. तो नेक्स्ट 15 बॉल्स में सुगणेश ने 35 किया. 15 बॉल्स 35. And we were expecting 155 to 160 score, but because of his great inning, we scored 180 of 20 so beyond. Wow. Beyond. So 180 for 5. तो ये है आपका प्लानिंग कि फर्स्ट 6 ओवर, देन 6 ओवर, देन 4 ओवर्स, और आगे किया जाता है. We scored 180 batting first. So 180 was a quite difficult target for them. In spite of that, they scored 90 odd for no loss or 1 wicket of 9 overs only or 10 overs with 9 and over. So उनको भी चांस था. But then again, the master tactics, the strategy, our bowlers, then left-arm spinners, we got 1 wicket. Then we brought a off spinner for both the left-handers. He got wickets. Kunal Phandse again got 2 wickets of both left-handers. तो लेफ्ट-हैंड बैट्समैन को लेफ्ट-आर्म स्पिनर को लाना, वो उन्होंने मिस्टेक किया. इंग्लैंड ने मिस्टेक किया जो लेफ्ट हैंड बैट्समैन के लिए लेफ्ट आर्म स्पिनर लाना एंड अ शॉर्ट बाउंड्री 55 यार्ड बाउंड्री एंड मिड विकेट 6. ही स्कोर्ड, ही हिट 18 रन्स ऑफ दैट ओवर. जो सिमिलर टाइप का हम लोग का टाइम पे था, दोनों लेफ्ट हैंडर. वी ब्रॉट कुणाल फंडसे एज एन ऑफ स्पिनर एंड ही गॉट बोथ लेफ्ट हैंडर्स विकेट. दैट इज द डिफरेंस बिटवीन अ विनिंग एंड लूजिंग. Wow. Sir, कितना अच्छा आपने बताया कि it is all about planning and strategy. So when you're going into a big match, how important it is to plan, to strategize. कितना अच्छे से आपने explain किया. अभी तक सर एक word मैंने सुना था pinch hitter, पर शार्प शूटर मैंने पहली बार सुना आपसे. सो दैट इज अ न्यू कॉन्सेप्ट टू लर्न फॉर मी एज वेल. आई एम श्योर ऑल आवर पार्टिसिपेंट्स आर एंजॉयिंग. सर अभी आप जब ये बोल रहे थे तो आपने बताते वक्त जब आइडेंटिफाई किए, तो उसके बारे में आपको मैं पूछूंगा कि स्किल्स आप कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि दिस इज अ गुड प्लेयर और ही इज अ गुड प्लेयर टू ओपन द बैटिंग. ये प्लेयर अच्छा है मिडिल ऑर्डर के लिए, ये प्लेयर को हम ये रोल देंगे शार्प शूटर का, जाके मारो. तो ये एज अ कोच, हाउ डू यू आइडेंटिफाई दिस स्किल व्हेन यू गेट अ पूल ऑफ अबाउट 15 to 20 प्लेयर्स इन द स्क्वाड? सर प्रसन्न, वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है. इसको, ये मेरा सेकंड रोल आता है, ये मेरा रोल बाद में आता है. उससे भी पहला बिग कॉम्प्लीमेंट जाता है ऑल सिलेक्टर्स को. ऑल सिलेक्टर्स, एब्सोल्युटली बिग हैट्स ऑफ टू ऑल सिलेक्टर्स. जो सिलेक्टर ने जो काम
और वो सिलेक्टर का जॉब है टू आइडेंटिफाई द राइट पर्सन, टू आइडेंटिफाई द राइट टैलेंट एंड आइडेंटिफाई द राइट कॉम्बिनेशन. Yes. दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, टू आइडेंटिफाई द राइट कॉम्बिनेशन कि ये 15 ये बेस्ट कॉम्बिनेशन के प्लेयर होंगे जिसमें 5 फास्ट बॉलर है, 3 स्पिनर है, ये ऑलराउंडर है, ये विकेट कीपर है, ये टॉप ऑर्डर बैट्समैन है, ये शार्प शूटर्स है. ये सब आइडेंटिफाई करने का काम सिलेक्टर का है. और ये सिलेक्टर ने इतना ब्रिलियंट काम करके रखा था, इतना ब्यूटीफुल टीम निकाल के दिया कि मुझे सिर्फ देखना था, ओके इसको खिलाओ कि इसको खिलाओ. अब इसको मैं थोड़ा जोकिंगली बोलता हूँ, हमारे मुंबई के लैंग्वेज में टिपिकल, इसको बोलता हूँ मेरे लिए कि काजू खाओ कि बादाम खाओ. मेरे पास चॉइस इतने थे कि इसको खिलाओ कि इसको खिलाओ. इसको बोलते हम काजू खाओ कि बादाम खाओ. करेक्ट. तो ये काजू खाओ कि बादाम खाओ, ये जो मुझे दिया, ये थैंक्स टू सिलेक्टर्स. यस, ये सिलेक्टर ने दिया. देन मेरे लिए बहुत जॉब इजी था. और मैं एज इट इज टीम निकालने के टाइम मैं देख ही रहा था कि ओके ये है, ये है, ये है. एक बार मेरे हाथ में आने के बाद मेरे पास चॉइस था, ओके ये. देन रोल डिफाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है प्रसन्ना. यस, रोल डिफाइन करना. एक बार आने के बाद रोल डिफाइन करना, ओके तेरा रोल ये है, तू इस रोल में खेलेगा. यस. like कुणाल फंडसे इज अ ट्रेडिशनल ओपनिंग बैट्समैन, ऑल अलोंग द ग्राउंड खेलने वाला प्लेयर. लेकिन T20 में वो ऑल अलोंग द ग्राउंड भी चलता है. Yes. Still he can hit the boundary, he can rotate the strike, he can score runs, he can improvise. And when he scored 50, brilliant 50 in the finals, that means he showed कि he can do the job. तो उसका वो जॉब है, वसीम का जॉब वो है, देन वो शार्प शूटर सुगनेश का जॉब वो है. तो हर प्लेयर का अपना अपना जॉब है. वो जॉब एक बार डिफाइन करने के बाद आपका रोल बहुत इजी होता है. करेक्ट. एब्सोल्युटली सर, सो वंडरफुली एक्सप्लेन्ड. अभी आपने जब इसके पहले जब एक्सप्लेनेशन दिया कि व्हेन यू वर बैटिंग फर्स्ट, तो आपने टारगेट्स रखे थे कि 6 ओवर में 40 करेंगे. फिर बाद में आपने 20 ओवर्स को डिवाइड किया था. तो शार्प शूटर्स का रोल था, मिडिल ऑर्डर बैट्समैन का रोल था, ओपनिंग बैट्समैन का रोल था. तो ये आपने बताया जब यू वर बैटिंग फर्स्ट. पर समझो आप अभी चेस कर रहे हैं सर. ओके, यू आर चेजिंग अबाउट से 175 180 इन अ 20 ओवर्स मैच. तो रिक्वायर्ड रन रेट है 8 और 9 ओवर्स का. तब आप कैसे स्ट्रेटेजाइज करते हैं व्हेन चेजिंग अ टफ टारगेट व्हिच इज मोर देन अबाउट 8.5 to 9 रन्स पर ओवर? तब आप कैसे वही बैटिंग ऑर्डर रखते हैं, थोड़ा चेंज करते हैं? कैसे प्लानिंग और स्ट्रेटेजी होती है इन अ रियल लाइफ मैच? या इसमें हम लोग क्या करते हैं, क्या करना चाहिए कि हम लोग 11 के 11 यानी फुल 15 प्लेयर्स हम लोग साथ में बैठते हैं. सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि एक मैच खेलने के वक्त आप कहीं भी 15 प्लेयर्स यहां वहां मत जाओ, यहां वहां मत जाओ. तो क्या होता है कि किसी को मालूम नहीं पड़ता है कि एक इंपॉर्टेंट कुछ मैसेज देना है, या फिर अपने को गेम का जो इन्वॉल्वमेंट होता है, वो गेम का इन्वॉल्वमेंट खास करके टी20 में तो बॉल बाय बॉल कंसंट्रेशन होना चाहिए, क्योंकि एक बॉल भी मैटर करता है. करेक्ट. तो इसके लिए आपके सारे 15 प्लेयर एक जगह पे होना चाहिए, और आपका गेम प्लान क्या है वो सबको समझना चाहिए. क्योंकि जो 15 प्लेयर रिजर्व वाले हैं उनको हम लोग मैसेज भी देते हैं कि ओके ये है. और इसके पहले सारे 11 प्लेयर को, हर प्लेयर को रेडी रहना है. T20 में आपका फ्लेक्सिबल अप्रोच रहता है, स्पेशली बैटिंग. करेक्ट. और यहाँ पे क्या होता है कि आपका शार्प शूटर पहला आ सकता है, 3 नंबर पे भी आ सकता है, डिपेंड ऑन सिचुएशन. करेक्ट. अभी मान लो आपने एक 180 का टारगेट लिया, अब इसको चेस कैसे करना है? तो 180 में हमने आप थोड़ा सा 9 का एवरेज है, तो 9 का एवरेज से हम लोग को चेस करना है. तो कब कैसे चेस करेंगे? तो हमारा टारगेट ये होगा, हम ड्रेसिंग रूम में ऐसे हम लोग स्ट्रेटेजी बनाएंगे कि ट्राई टू गेट 50 ऑफ 6. तो वो हम लोग 6 ओवर का मैक्सिमम यूटिलाइज करने को देखेंगे, क्योंकि अब वहां पे स्कोप है. यस, ओनली 2 फील्डर्स आउटसाइड सर्कल, so that वी कैन यूटिलाइज दैट 6 over 36 ball to the max. Correct. And if you get 50 and 60, great. Yes. Okay, even if you get 50 with minimum wickets, 0 or 1 wicket, fair enough. That's a decent target. Okay. Correct. Then next 4 overs, 6 to 10, try to get 8 an over. That is 32 to 35. 8 and a half. That means the target is required run rate is 10. Correct. Fair enough. But you keep wickets in hand. Yes. Okay? Sharp shooter है आपके पास. Yes. So 10 runs, 9-10 is not a big issue. You can score. One good over of 15-16 runs and you can adjust. Right? Correct. But make sure that next 4 overs, don't panic. Just take single two, odd boundary. And in 4 overs, try to take 32 with 8 and over. That is 32
to 35. Yes. So next 4 overs, 10 to 14, again you try to score 8.5, that is 35 to 37. Yes. Yeah. Yes. Now 6 overs left, right? Correct. Last six overs with wickets in hand, with plenty of your sharpshooters. Now you can send a sharpshooter in between, depend on the situation, depend on the bowler. Suppose I have a left-hander called Ravindra Sante, who is a brilliant big hitter, and their left-arm spinner is bowling that particular over. और वो अगर उस ओवर में अगर लेफ्ट हैंड स्पिनर है तो मैं लेफ्ट हैंड बैट्समैन को भेजता हूं ताकि उसने 2-3 सिक्स अगर वहां पे मारा तो एक ही ओवर में आपको 17-18 का टारगेट मिलता है, तो सडनली आपका रिड्यूस हो जाता है. Yes, absolutely. Right? So target होता है from 10, 11 to again 9, 8.5. Yes. So that time out of 4-5 sharp shooter, अगर मेरा एक sharp shooter अगर चलता है, वहां पे मैं gamble खेलता हूँ. Yes. Yeah. So you should know when to play the gamble. Yes. Absolutely. Yeah. So ये सब पर ये है, and then you finish it off. Yes. नहीं, आपने कितने अच्छे से बताया कि how to close in that target and how to play a gamble at the right moment. And बताते वक्त सर आपने एक बहुत अच्छा इंग्लिश फ्रेज का यूज किया कि don't panic. पर ये कैसे है कि this is the mindset, this is the mental aspect of the game, जो भी आज क्रिकेट में बहुत इंपॉर्टेंट है. तो जब आप चेस कर रहे होते हैं कि से फॉर एग्जांपल 30 बॉल्स में 50 रन चाहिए, 30 बॉल में 50 रन चाहिए, मतलब 5 ओवर में 50, तो अभी यहाँ पे बैठ के हम बोल सकते हैं कि डोंट पैनिक. बट आप ये सब बैट्समैन को सर कैसे तैयार करते हैं इन सारे सिचुएशंस में कि आप पैनिक एक्चुअल मैच सिचुएशन में ना हो जाए? ग्रेट क्वेश्चन प्रसन्ना, ये वन ऑफ द फाइनेस्ट क्वेश्चन है. यही अपना पूरा विनिंग एंड लूजिंग का डिफरेंस है ये क्वेश्चन पे. अब इसमें मैं 2 एग्जांपल देता हूं इंडियन टीम के 2 बैट्समैन के. वो कंसिस्टेंटली ये आपको एग्जांपल दे रहे हैं, पूरे पीडी क्रिकेटर्स को मैसेज है ये कि 2 प्लेयर मास्टर ऑफ चेसर्स, मास्टर ऑफ चेसिंग, विराट कोहली एंड एमएस धोनी. विराट कोहली एंड एमएस धोनी दोनों मास्टर है. एक एग्रेसिव खेलने वाला प्लेयर विराट कोहली, दूसरा एमएस धोनी जो चेसिंग का मास्टर है, एंड ही इज अ मास्टर टैक्टिशियन इन बैटिंग. आई टेल यू व्हाई. मास्टर टैक्टिशियन. तो वो क्या करता है कि आपने जैसे बोला कि 30 बॉल में 50 रन चाहिए, तो वो स्ट्रेटेजी क्या बनाता है, प्लस वो नॉन स्ट्राइकर को भी बोलता है कि हरी नहीं करना, पैनिक नहीं होना, थोड़ा रन रेट ऊपर जाएगा तो भी चलेगा लेकिन पैनिक नहीं होना, विकेट थ्रो नहीं करना. ओके, 8 रन का एवरेज 10 पे गया तो भी पैनिक नहीं होना, नो प्रॉब्लम, विल मेक इट, बट डोंट थ्रो योर विकेट. सो इसका मतलब क्या है कि उसके दिमाग में क्या रहता है कि 50 रन का टारगेट दूर है लेकिन अभी यहाँ पे पैनिक नहीं होना, वी हैव 30 बॉल्स. करेक्ट. सो आपको गेम नजदीक लेके जाना है, नजदीक लेके जाना है. जितना गेम नजदीक लेके जाओगे उतना इजी होगा. जितना गेम यहाँ पे आप अगर शॉट खेलोगे आउट होगे तो गेम यहीं पे खत्म हो जाएगा. सो मेक श्योर करो कि यहाँ पे गेम नजदीक लेके जाओ. 30, 20, 10 फिनिश. और ये करने के बाद आपके पास आपने 30 बॉल बोला, दैट इज 5 ओवर्स, राइट? 5 ओवर्स 50 रन, दैट इज 10 एन ओवर. मान लो आप नजदीक लेके गए, लास्ट ओवर 15 टू विन, 15 का टारगेट पे गया. हाँ, टोटल है 5 ओवर्स में 10 का टारगेट, लेकिन एंड ऑफ द लास्ट ओवर इज 15 और 16. अभी धोनी का साइकोलॉजी क्या है? धोनी बोलता है कि उस टाइम लास्ट ओवर में बैट्समैन से भी बॉलर पे ज्यादा प्रेशर है, क्योंकि हाउ टू बॉल एंड वेयर टू बॉल. I think everybody should note this point. I think Sulu sir, sorry to interrupt, but everybody should note this point कि बैट्समैन से ज्यादा प्रेशर बॉलर के ऊपर है जब वो 15 रन डिफेंड कर रहा है. What a lovely thought this is. Yes sir, please continue. अब 16 विन कर रहे हैं हम लोग, 16 को जा रहे टारगेट को. अब बॉलर पे प्रेशर है. ओके, तो अब मान लो इसमें पहले 2 बॉल में अगर 8 रन आ गया, आइदर 6 और 2 बाउंड्री, नेक्स्ट 4 बॉल में 8 रन करना है आपको, प्रेशर अगेन बॉलर पे आ गया. आप हमेशा मैच में देखो कि इस सिचुएशन में कैप्टन गया, मिड ऑन वाला गया, मिड ऑफ वाला गया, बाउंड्री वाला गया, तो 4-4, 5-5 लोग कैप्टनसी करते हैं, उसको एडवाइस करते हैं, तू ये डालना, तू वो डालना, तो उसका माइंड कंफ्यूज हो गया. करेक्ट. अब ये कंफ्यूज होने में शायद एक आधा वाइड बॉल आ सकता है, तो आपको एक्स्ट्रा रन आ गया. करेक्ट. लूज बॉल आ गया,
तो ये प्रेशर लेके इनफैक्ट बैट्समैन का प्रेशर पूरा ले रहा है, बॉलर ले रहा है। करेक्ट। और आपको उस वक्त आपको रिलैक्स रहना है एंड डोंट प्ले एनी फनी शॉट्स। यस। महेंद्र सिंह धोनी एंड विराट कोहली कभी फनी शॉट्स कभी खेला नहीं है। वो पैडल स्वीप, वो रिवर्स, इनसाइड आउट, नॉर्मल क्रिकेटिंग शॉट्स खेल के वो मैच जिताते हैं, जो उनका स्ट्रेंथ है। करेक्ट। वो अपने स्ट्रेंथ पे खेलते हैं। यस। एंड नेक्स्ट 4 balls 8 runs इज इजी टारगेट। करेक्ट। एंड ऐसे करके वो मैच जिताते। मैंने धोनी का 3 मैच एटलीस्ट मुझे याद है, 3 मैच, एक वेस्ट इंडीज में चैंपियंस ट्रॉफी के बाद एक हुआ मैच, सीरीज हुआ, 3 नेशन टूर्नामेंट, श्रीलंका, वेस्ट इंडीज एंड इंडिया। उसमें धोनी का हैमस्ट्रिंग गया था एंड देन अंदर अनफिट था, अंदर गया। लेकिन फिर सिचुएशन ऐसा है कि लास्ट ओवर एंड 19 टू विन, देन लास्ट 3 ball 18 टू विन। लास्ट 3 ball 18 टू विन। MS धोनी ने लास्ट 3 ball में 3 6 मार के मैच जिताया। दैट वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इनिंग। उसको इतना कॉन्फिडेंस है अपने एबिलिटी पे, अपने स्ट्रेंथ पे खेलता है, एंड उसका साइकोलॉजी है कि मेरे से ज्यादा बॉलर को ज्यादा प्रेशर है। Oh yes, absolutely. ये थॉट लेके जाना है। और ये पार्टनरशिप में, जैसा आपका क्वेश्चन था कि 30 ball 50, आपको 30 ball पे नजदीक लेके जाना है। फ्रॉम बॉल एंड रन्स 15 balls, यहाँ पे 30 runs, यहाँ पे 12 balls, यहाँ पे 25 runs, यहाँ पे 6 ball, यहाँ पे 15 runs, and you can win the match. Oh, absolutely. So wonderfully explained in a mathematical and a logical format. Take the game close. And I think, Sulu sir, we can talk about batting for hours and hours, but we have a lot of questions also, which we will take later, sir. But you just to sum it up about batting, जैसे आपने बताया कि play to your strength. Technique तो आप सीखोगे. If you don't have, जैसे मैं सारे जो हमारे participants, we've got about 135 participants. ये सबको मैं बोलना चाहूँगा, जैसे सुलक्षण कुलकर्णी सर जो हमारे इंडियन टीम के कोच है, उन्होंने बताया कि अगर आपके पास पीडी की टीम नहीं होगी, दिव्यांग की क्रिकेट टीम नहीं होगी, तो कहीं ना कहीं पे नॉर्मल क्रिकेट नेट्स में आप जाइए, प्रैक्टिस शुरू कीजिए, टेक्निक के ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए, प्ले टू योर स्ट्रेंथ। जो आपके पास है, जो आपके पास नहीं है, उसके बारे में बिल्कुल मत सोचिए। प्ले टू योर स्ट्रेंथ, मैच प्रैक्टिस कीजिए, नेट प्रैक्टिस कीजिए, डोंट पैनिक, होल्ड ऑन, ट्रस्ट योर बिलीफ, ट्रस्ट योर कॉन्फिडेंस, एंड थिंग्स विल डेफिनेटली चेंज। सो वी हैव अ लॉट टू डिस्कस। देयर आर सम क्वेश्चंस आल्सो दैट वी हैव गॉट, बट वी विल टेक देम लेटर। बट आज अगर आपको याद होगा कि आज का जो हमारा पहला दिन है क्रिकेट एकेडमी फॉर दिव्यांग, आज हमारे 2 टॉपिक्स है, और ये दोनों टॉपिक्स में सुलक्षण कुलकर्णी सर एक्सपर्ट है, क्योंकि वो खुद वो रोल प्ले करते थे। अभी उन्होंने महेंद्र सिंह धोनी की बात की, तो बात की अभी सुलक्षण कुलकर्णी सर ने हमें बहुत सारी चीजें बताई, प्लानिंग, स्ट्रेटेजी, टेक्निक, चेजिंग, प्रेशर, प्ले टू योर स्ट्रेंथ एंड ऑल दोस थिंग्स दैट ही एक्सप्लेन। बट वी विल गो टू अनदर इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ऑफ द क्रिकेटिंग वर्ल्ड, एंड स्पेशली आज T20 क्रिकेट में, व्हिच इज सो मच गेटिंग अ लॉट ऑफ डिस्कशन, एंड दैट इज अबाउट wicket keeping. So before I ask any questions, Sulakshan Kulkarni sir, your introductory thoughts on the importance of a good wicket keeper or wicket keeping in this format of PD cricket, in the T20 format, sir. Yeah, thank you, Prasanna. Like I said, what is batting? The batting is finally to score runs. That is batsmanship. What about wicket keeping? विकेट कीपर वो बेस्ट नहीं जो ज्यादा कैचेस या स्टंपिंग पकड़े। विकेट कीपर वो जो सबसे कम मिस्टेक करे, जो सबसे कम ड्रॉप करे, कैचेस या स्टंप करे, सबसे कम जो छोड़े, वो विकेट कीपर। और उस विकेट कीपर को मानता हूं कि जो सबसे मिनिमम मिस्टेक करे मैच में, ही इज द विकेट कीपर। और ये क्वालिटी होनी चाहिए। और इस क्वालिटी के लिए आपके पास एक कुछ बेसिक एक नॉर्म्स है विकेट कीपर्स के। यू शुड हैव अ आई, you should have anticipation, you should have a soft hands, movement, flexibility, the speed, and then last है at India level, at state or India level, the final is again, जैसा मैंने बैट्समैन को शार्प शूटर बोला, यहाँ पे हमारे विकेट कीपर स्ट्रीट स्मार्ट होने चाहिए। Yes, absolutely. The street smart विकेट कीपर 2 स्टेप ऊपर रहते हैं नॉर्मल विकेट कीपर से। ये एग्जैक्टली नो कि व्हेन टू गेट द विकेट, और कहां से अंपायर से भी एक आधा विकेट अपील करके निकाल सकता है। ये एक आर्ट है। एंड विदाउट हार्मिंग एनीवन, विदाउट हार्मिंग द अंपायर्स, किसी को नहीं पता होते, बिना पता चले आप एक सोफिस्टिकेटली आप एक
जेंटलमैनली भी एक विकेट निकाल सकते हैं, ये एक आर्ट है। ये आर्ट मैं बहुत बार सिखाता हूँ विकेट कीपर्स को। सर आप जब ये बोल रहे थे ना, तो आपके चेहरे पे एक मिस्चीवियस स्माइल वो हमने देखी। क्या है, थोड़ा उसका राज बताइए। ये हमारे दोस्त है प्रसाद देसाई साहब, यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो प्रसाद देसाई साहब और हम लोग बहुत मैच खेले, और अंडर 19 से लेके क्लब में। प्रसाद देसाई वॉज अ ब्रिलियंट फास्ट बॉलर, और हम लोग बहुत बार ऐसे बोलते थे कि प्रसाद, आप जब बॉलिंग करोगे फॉलो थ्रू में सिर्फ आपका हाथ ऊपर रखना, बाकी कुछ करना नहीं, बाकी काम मैं करूंगा। मैं ऐसे अगर बॉल बीट होता था तो मैं ऐसे बॉल उड़ा के ऐसे सीधा यस इज गॉन आउट, और प्रसाद अपने फॉलो थ्रू में हाथ ऊपर करता था तो अंपायर का हाथ ऊपर। प्रसाद सर भी हंस रहे हैं, प्रसाद सर को भी पुरानी यादें आ रही है। देखो क्या, ही स्माइलिंग, कांट स्टॉप हिज स्माइल। याद आ गया पूरी चीजें। अपील तो नहीं कर रहे ना प्रसाद सर, अपील नहीं कर रहे ना? नहीं, हाथ ऊपर आपको काफी था अंपायर के लिए। आवाज होती तो शायद नेक्स्ट बैट्समैन को भी आउट देता। आपको आपको प्रसन्ना, एक मैं एग्जांपल देता हूँ इसमें। यस यस। एक बहुत अच्छा किस्सा है ये। हाँ। एक कांगालिक मैच में हम लोग मैच खेल रहे थे, दिलीप वेंगसरकर कैप्टन थे हमारे। दिलीप वेंगसरकर, संजय मांजरेकर, ये सब मैच खेल रहे थे। तो पिलू रिपोर्टर, आपने नाम सुना होगा, Yes, टेस्ट umpire. अंपायर, करेक्ट। इंडिया के बहुत सीनियर टेस्ट अंपायर, वो अंपायरिंग कर रहे थे। और उस मैच में एक फास्ट बॉलर को एक ऐसा बीट हो गया बड़ा, एक आधा फीट के ऊपर जब बीट हो गया वो, और इन्होंने अपील किया, दिलीप वेंगसरकर पूरे टीम ने अपील किया। तो अपील किया तो नॉट आउट बोला वो, पिलू रिपोर्टर अंपायर ने नॉट आउट बोला। और बाद में उनको, दिलीप वेंगसरकर को रियलाइज हुआ कि हमारे विकेट कीपर ने अपील ही नहीं किया है। तो मुझे उन्होंने कहा कि आपने अपील क्यों नहीं किया? हा? तो मैं उनको बोला, नहीं बोला, मेरे को स्ट्रेट दिखता है और बहुत आधा फीट दूर था और आउट नहीं था। अरे मुझे बहुत पर्सनली खराब लगा हो कि हम लोग खाली फुकट अपील कर रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं कि नकली अपील करना। नकली अपील। तो नहीं था। तो वेंगसरकर बोलते हो, तेरे को क्या करने का है, हम लोगों ने सब अपील किया ना, तू सिर्फ हाथ ऊपर करना था तो आउट देता था वो, तो तूने अपील नहीं किया, इसके लिए अंपायर ने आउट नहीं दिया। ओके, तो ओवर खत्म हो गया। ओवर खत्म होने के बाद हम लोग उस तरफ गए अपोजिट एंड पे, तो वो अंपायर वहीं पे खड़े थे, पिलू रिपोर्टर सर। और वो आए और उनको, दिलीप वेंगसरकर उनको बोला कि मिस्टर वेंगसरकर, यू नो व्हाई आई डिडंट गिव हिम आउट? आई नो दिस बॉय, ही इज अ रियल जेंटलमैन, ही इज अ रियल जेंटलमैन, दैट्स व्हाई आई डिडंट गिव हिम आउट। उसने अपील नहीं किया है। तो हम लोग आगे गए और मैंने दिलीप को बोला कि दिलीप, देखा मेरा रेपुटेशन, देखा मैं कितना जेंटलमैन हूं। आपको विकेट चाहिए ना, आपको विकेट चाहिए, मैं आपको विकेट देता हूं। नेक्स्ट ओवर में उस बॉलर को, सेम जैसे मैंने प्रसाद को बोला था, उस बॉलर को बोला ऑफ स्टंप के बाहर थोड़ा सा आउट स्विंग डालना और बैट्समैन डेफिनेट बीट होगा। जब बीट होगा तो सिर्फ हाथ ऊपर करके आएगा आगे। नेक्स्ट ओवर में उसने बॉल डाला, वो बीट हो गया, और मैंने बॉल ऐसे ऊपर फेंका कि यस करके, गॉन इज गॉन। और किसी ने अपील नहीं किया था, किसी ने, पिलू रिपोर्टर का हाथ ऊपर। तो तब मैंने वेंगसर को बोला, देखा मेरा रेपुटेशन। तो ये है रेपुटेशन। अब इसको बोलते हैं स्मार्टनेस, कि कैसे आप आराम से एक आउट ले सकते हैं आपके स्मार्टनेस से। तो ये भी एक स्मार्टनेस है। इस स्मार्टनेस में प्रसन्ना, मैं बोलता हूं धोनी का जो स्मार्टनेस है एज ए विकेट कीपर, ही इज अ स्ट्रिक्ट स्मार्ट विकेट कीपर। वो अपनी एनर्जी कभी वेस्ट नहीं करता है। करेक्ट। अपने अपने जो इमोशंस है वो दिखाता नहीं है। जब जाना है, जरूरी है, तभी ये करेगा, अदरवाइज अपनी एनर्जी सेव करता है वो। यस। और जब जरूरी है तब रन आउट, तब स्टंपिंग। उसके स्टंपिंग्स देखना, स्पेशली मेरे सारे विकेट कीपर को मेरा मैसेज है कि धोनी की स्टंपिंग समथिंग डिफरेंट है देन अदर विकेट कीपर्स। करेक्ट, एब्सोल्युटली। जब जब धोनी स्टंपिंग करता है तो उसको एक सेंस आता है कि ये स्टंपिंग का बॉल है, ये बैट्समैन क्रीज के थोड़े बाहर है, तो वो बॉल बिल्कुल स्टंप के नजदीक कलेक्ट करता है, वहीं से स्टंप उड़ाता है। करेक्ट। तो वो जो मार्जिन है, वो जो टाइमिंग का जो मार्जिन है, वो बहुत कम हो जाता है। यस। तो जनरली क्या होता है कि विकेट कीपर जब बॉल कलेक्ट करता है तो बॉल रिसीव भी करता है। करेक्ट। जब बॉल रिसीव करता है तो उसका हाथ पीछे जाता है। यस। और हाथ पीछे जाने के बाद फिर वो स्टंपिंग करेगा, तो उसमें वो जो टाइम है वो स्प्लिट सेकंड का वो मिस करता है। करेक्ट। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन धोनी स्टंपिंग एंड नॉर्मल विकेट कीपर स्टंपिंग। करेक्ट, एब्सोल्युटली।
सर अभी आपने बात की महेंद्र सिंह धोनी की कि वो हैंड स्पीड का आपने बात की कि कैसे स्टंप के एकदम नजदीक से ये करते हैं। तो हमारे जो विकेट कीपर्स हैं हमारे टीम के दिव्यांग क्रिकेट के और जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस हमें आए हैं विकेट कीपर्स से। तो जो शुरू कर रहे हैं विकेट कीपिंग शुरू करना विद सम डिफॉर्मिटी इन द बॉडी, तो बेसिक उन्होंने कैसे शुरुआत करनी चाहिए? व्हाट आर द बेसिक ड्रिल्स जो आप सजेस्ट करेंगे फॉर अ विकेट कीपर इन दिव्यांग क्रिकेट सर? मैं इनको बोलूंगा कि आप बहुत आपके पास ड्रिल्स है, आप कर सकते हो। जैसे स्लिप फील्डर अकेला कैचेस लेता है, फर्स्ट स्लिप वाला फील्डर, तो वो उसका जो पोजीशन है मान लो, तो वही पोजीशन पे आप नीचे बैठ के आप नॉर्मल इस पे आपका बैठना, अभी डिफॉर्मिटी की वजह से किसी किसी को प्रॉब्लम होता है, हाँ किसी का पैर का प्रॉब्लम है, किसी का हाथ का प्रॉब्लम है, कुछ प्रॉब्लम है। लेकिन आप एडजस्ट करके आप जैसे भी करना चाहते हो, अगर विकेट कीपिंग का करियर आप देख रहे हो कि विकेट कीपर करके बनना, तो आप उस इसमें जो भी आपका कलेक्शन है, आप कलेक्शन पे फोकस कर सकते हो। जैसे मैंने बोला किसी का पैर का प्रॉब्लम है तो हैंड आई से भी आप क्रिकेट खेल सकते हो। वसीम वॉज द ग्रेटेस्ट एग्जाम्पल। तो उसमें प्रसन्ना, हमारा जो विकेट कीपर था, फर्स्ट विकेट कीपर तुषार पॉल, उसका लेफ्ट लेग का जयपुर फुट यूज करता था, लेफ्ट लेग, एंड विद दैट लेफ्ट लेग उसने ब्रिलियंट कीपिंग किया वर्ल्ड कप में। ही वाज अ स्मार्ट कीपर, एंड वो पोजीशन से भी उसने कीपिंग किया। आपको पहला तो आपको एक पैशन होना चाहिए। आपने गेम, विकेट कीपिंग ये जॉब ऐसा है कि थैंकलेस जॉब है। करेक्ट। आपने आपने एंजॉय करना चाहिए, आपने गेम एंजॉय करना चाहिए। विकेट कीपिंग एंजॉय करने वाली कोशिश ये है, डिपार्टमेंट है। अगर आप विकेट कीपिंग एंजॉय नहीं किया तो आपको तकलीफ होगा, क्योंकि मैच में बहुत हार्ड थ्रोज आते हैं। आप T20 खेलते हो तो कहीं से थ्रो आ गया, आपको लग सकता है, और आपने सही नहीं किया तो आपको फिंगर को लग सकता है। तो ये आर्ट आपको डेवलप करना है। करेक्ट। और ये डेवलप करते हुए आप नेट्स में जाओ। जब नेट में बॉलर बॉलिंग करते हैं, स्पेशली स्पिनर्स बॉलिंग करते हैं, तो आप नेट में जाके विकेट विन कर सकते हैं। जब नेट में कोई नहीं है, आप स्पॉट बॉलिंग पे कीपिंग कर सकते हैं। आप स्पॉट बॉलिंग लगा के कीपिंग कर सकते हैं। आप एक्स्ट्रा करके, आपको जब अच्छा बनना है तो आपको वो स्पॉट बॉलिंग लगा के कीपिंग करना। विकेट कीपिंग के लिए प्रसन्ना, सबसे डिफिकल्ट बॉलिंग वो है, विकेट कीपर उसको बोला जाता है जो ऑफ स्पिनर को कीपिंग करता हो, ऑफ स्पिनर को, क्योंकि सबसे डिफिकल्ट आर्ट है ऑफ स्पिनर को कीपिंग करना। राइट हैंड बैट्समैन को ऑफ स्पिनर का बॉल कीपिंग करना, बॉल अंदर आ रहा है, ड्राइव मारने जा रहा है, बॉल टर्न होके स्टंप के ऊपर से, हम लोग एक्सपेक्ट करते कि बोल्ड होगा, लेकिन वो बोल्ड नहीं होते, बॉल नीचे से ऊपर से आता है, साइड से जा सकता है, वो 4 बाइट जाता है। तो वो सबसे डिफिकल्ट है। तो वो आर्ट आप नेट्स में प्रैक्टिस कर सकते हो। देन आप वॉल पे मार के आप कैच प्रैक्टिस कर सकते हो। वॉल पे मार के आप फीट मूवमेंट कर सकते हो। ये फीट मूवमेंट है जो फास्ट बॉलर के लिए मूवमेंट है। देन आप जब प्रैक्टिस करते हो, थ्रोइंग प्रैक्टिस, फील्डिंग प्रैक्टिस करते हो, आप थ्रो की प्रैक्टिस ले सकते हो। तो ऐसे करते करते आप जा सकते हो आगे, और आप प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस के साथ साथ मैच भी खेलो। तो मैच में आपको एक्सपीरियंस, आपको टेम्परामेंट भी आपको डेवलप होगा। करेक्ट। जैसा आपने जिक्र किया था पहले कि वो टाइट मैच होता है तो कैसे करते हैं, टाइट मैच में उनका जो टेम्परामेंट है वो कैसे, जैसे आपने बैट्समैन का टेम्परामेंट बोला, मैं आपको बोलता हूँ मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से, मैं बहुत बार मैंने फील किया है कि प्रेशर फील किया है। और रणजी ट्रॉफी फाइनल, रणजी ट्रॉफी कोई इंपॉर्टेंट मैच, मैंने प्रेशर फील किया है। ऐसा कोई बोल नहीं सकता है कि इसमें पूरे क्रिकेट खेलने वाले प्रसाद सर यहाँ पे है, वो भी बोलेंगे कि प्रेशर फील कर सकते हैं आप, लेकिन वो प्रेशर फील करना और प्रेशर एंजॉय करना, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन अ गुड एंड अ ग्रेट प्लेयर। Yes, absolutely. Enjoy the pressure. Absolutely. So well said by Asulakshan Kulkarni sir that you enjoy the pressure. Pressure तो आएगा ही, क्रंच सिचुएशन पे आएगा, एंड सच वंडरफुल ड्रिल्स जैसे आपने बताया सुलू सर कि जस्ट प्रैक्टिस करते रहो। आपके पास अगर वहां पे फैसिलिटी नहीं है तो सिर्फ दीवार के ऊपर आप मार के प्रैक्टिस के कैचेस ले सकते हो। सर जब आप विकेट कीपिंग करते थे मुंबई के लिए, स्पिनर्स अच्छे हुआ करते थे, फास्ट बॉलर्स अच्छे हुआ करते थे, तो आप एक सीजन में, एक दिन में कितने कैचेस लेते थे? ऐसा बोलते हैं कि विकेट कीपर को ज्यादा से ज्यादा कैचेस लेने पड़ते हैं, बिकॉज 90 ओवर्स का एक दिन का अगर प्ले होगा, मैं 4 डे मैच की बात कर रहा हूँ, T20 की बात करेंगे तो 2020 फॉर्मेट में समझो 20 ओवर्स में ज्यादा से ज्यादा बॉल्स तो विकेट कीपर के पास आएंगी। मतलब या तो थ्रो आ सकता है या तो कैच आ सकता है। तो ये प्रैक्टिस कितनी इंपॉर्टेंट है फॉर अ विकेट कीपर टू बी एज परफेक्ट एज पॉसिबल? प्रसन्ना,
मेरी जिंदगी विकेट कीपिंग में गई है। Yes. फ्रॉम अंडर 15 टू रणजी ट्रॉफी रिटायर होते तक, यहाँ पे उसमें 17 इयर्स फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेला एज ए विकेट कीपर बैट्समैन। Correct. मैं आपको एक आंसर देता हूँ, कितनी प्रैक्टिस करनी चाहिए। Yes. मुझे उस लेवल पे पहुंचने के लिए रणजी ट्रॉफी लेवल पे पहुंचने के लिए एज ए विकेट कीपर, अगर मैं ड्रेसिंग रूम में सिलेक्ट होता हूँ, ड्रेसिंग रूम में बैठता हूँ मुंबई के, अलॉन्ग विद गावस्कर, वेंकसरकर एंड रवि शास्त्री एंड तेंदुलकर, इस टीम में बैठने के लिए, फिर जाके ग्राउंड पे खेलने के लिए एज ए विकेट कीपर, मुझे 1 लाख बॉल कम से कम मुझे प्रैक्टिस करना पड़ा, जब ये ड्रेसिंग रूम में आ सका। Oh wow, 1 lakh. मैं मिनिमम बोल रहा हूं, मैं Minimum. Oh. यानी उस लेवल तक आने के लिए। Yeah. तो आपको डेली प्रैक्टिस, अरे ये 1 लाख बॉल में अगर मैच खेलते हो तो 90 ओवर्स, दैट इज 540 बॉल्स पर डे। सो 540 बॉल्स इनटू नंबर ऑफ मैचेस, नंबर ऑफ इयर्स, तो साल में आपके हो गए 30-40 हजार प्रैक्टिस मैच बॉल इनटू नंबर ऑफ इयर्स, 5 years, दैट इज 2 lakhs 3 lakh बॉल when you play रणजी ट्रॉफी। सो आपको डे इन डे आउट आपको करना चाहिए। लेकिन फिर से मैं बोलता हूं, जैसा लास्ट इसमें बोला, कि आपने एंजॉय करना चाहिए। Yes, ये जो आप कर रहे हो, ये 2 लाख की प्रैक्टिस नहीं है, ये प्रैक्टिस ऑटोमेटिक हो गई है। Correct. मैं इतना पैशनेटली मैं एंजॉय करता था ये गेम, क्योंकि मेरा ये रूटीन था। जैसे आप खाना खाते हो, लंच एंड डिनर करते हो, वैसा मेरा विकेट कीपिंग ये डिनर था, लंच एंड डिनर। Yeah, absolutely. उसके बगैर मैं आपको बोलता हूँ प्रसन्ना, शायद मैं लंच नहीं करूंगा, लेकिन मैं विकेट कीपिंग करूंगा। Oh wow. Absolutely. Great sir, great. तो जो हमारे क्रिकेटर्स हैं सर, दिव्यांग क्रिकेटर्स आज जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, we've got about 135-140 participants, उसमें विकेट कीपर्स भी हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आए। So in that जो हमारे दिव्यांग विकेट कीपर्स है, समझो कुछ डिफॉर्मिटी होगी, तो फिटनेस उन्होंने कैसे करना चाहिए? फॉर अ विकेट कीपर फिटनेस इज पैरामाउंट, ही हैज टू बी द फिटेस्ट प्लेयर इन द टीम। तो हमारे जो विकेट कीपर्स हैं, दिव्यांग क्रिकेटर्स के जो विकेट कीपर्स हैं, उनको आप कैसे एडवाइस करेंगे? व्हाट शुड बी देयर फिटनेस रूटीन इन अ सीजन या ऑफ सीजन में भी? मैं इन सब विकेट कीपर्स को एक ही एडवाइस करूंगा कि आप बेसिक पे रहे, सिंपल रहे। जो आप विकेट कीपिंग कर रहे हैं वो करना ही है, आप बेसिक, नथिंग स्पेशल। लेकिन आपकी जो फीट मोमेंट है, जो फास्ट बॉलर को हम करते हैं कि साइडवेज फीट मोमेंट, करेक्ट, वो साइडवेज फीट मोमेंट अभी आप ये कोरोना वायरस के इसमें आप घर पे भी कर सकते हो। यस। फिर आपको लगता है सिर्फ 2 स्टेप पे आप बॉल कलेक्ट करते हो मैक्सिमम, दैट इज वाइड बॉल। करेक्ट। 2 स्टेप ऑफ साइड, 2 स्टेप लेग साइड, इतना ही आपको फीट मूवमेंट करना है फास्ट बॉलर के लिए। आप स्पिनर को, आप जितना स्पॉट बॉलिंग, किसी को बॉल डालने लगाएंगे, आप थ्रो डाउन करेंगे, किसी को आप फ्रेंड को बोला थ्रो डाउन करने के लिए, थ्रो डाउन प्रैक्टिस। अगर कोई आपको फ्रेंड मिला, कोई ऑफ स्पिनर, लेफ्ट हैंड स्पिनर मिला, तो आप एक स्टंप लगा के आपसे स्पॉट बॉलिंग की कीपिंग कीजिए। करेक्ट। ये हो गया स्पिनर को। दूसरा हो गया फीट मोमेंट। अब फीट मोमेंट में आप कैच ले सकते हो, जो आपको मैच में काम में आने वाला है। जैसे मैंने बोला कि वॉल को मार के आपको कैच लेना है, तो वॉल को आप बॉल मार के कैसे आप फीट मोमेंट करेंगे? तो आप अगर एंगल दोगे उस बॉल को, टेनिस बॉल से वॉल को, तो आप वहां पे लेफ्ट पे मारोगे तो लेफ्ट एंगल से वहां पे आएगा, और आपकी फीट मूवमेंट वैसी होती जाएगी, आप कैच पकड़ोगे। आप राइट एंगल में मारोगे तो बॉल वो वहां पे जाएगा, आपका ऑफ साइड का गेम बनते जाएगा। करेक्ट। तो आपका ये फीट मूवमेंट हो गया फास्ट बॉलर के लिए। स्पिनर के लिए आप स्पॉट बॉलिंग का कीपिंग कर रहे हो। करेक्ट। आप उसी फ्रेंड को बोलो कि आप थ्रो डाउन करे, थ्रोज करे, मैं आपको पीछे से थोड़ा भाग के, जो फास्ट बॉलर को करते हैं, आपको फास्ट बॉलर का जो स्टेप्स है, मान लो 10-15 स्टेप्स पे खड़े हैं, और इमेजिन करो कि थर्डमैन से किसी ने थ्रो किया है, डीप पॉइंट से थ्रो किया है, और आपको वहां पे जाना है। या आप नॉर्मल पॉइंट या स्क्वायर लेग से अगर किसी के पास बॉल गया, तो आप वहां पे विकेट कीपर स्टंप पे जा रहा है और बॉल कलेक्ट कर रहा है, बैट्समैन को रन आउट कर रहा है। तो ये सिचुएशन कैसा होगा? तो ये आप इमेजिन करके आप ये प्रैक्टिस करो। इतने प्रैक्टिस करके आप मैच सिमुलेशन जैसे आप कीपिंग कर सकते हो। कभी कभी बोर हो जाता है विकेट कीपर को, डेली वही करके बोर हो जाता है, तो आप सिचुएशन क्रिएट करो, मैच सिमुलेशन, करेक्ट, कि ये ऐसा हुआ। अच्छा, दूसरा एक होता है कि प्लास्टिक कोन होता है, प्लास्टिक कोन, एंड देन वो अपना जो ये होता है ना, नेटची दोरी असते बघ, नेटची दोरी काय म्हणते त्याला, नायलॉन रोप, यस, नायलॉन रोप। अब उस पे हम लोग को विकेट कीपर को बिल्कुल नायलॉन रोप के सामने बुला के, यानी अप टू द स्टंप, उसको बुला के, वो अपना पार्टनर उसको नायलॉन रोप को मारता है और वो कैच पकड़ना है।
तो Outside edge. आपको क्वाड्रेंट का फील आता है, एक आवाज आता है। तो कभी इनसाइड भी आता है, कभी आउटसाइड भी आता है। करेक्ट 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 तो आप वो प्रैक्टिस कर सकते हो। करेक्ट। आप कौन होता है, प्लास्टिक का कौन बैट्समैन देता है उसको, कौन जैसे वहां पे फील आता है, ये आप दे सकते हो। तो ये सब ड्रिल्स है, इससे आप कर सकते हो। अच्छा, अगर आपको करना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप अपने खुद ड्रिल्स क्रिएट कर सकते हो। यस। उसके लिए घूम फिर के फिर से मैं बोलता हूँ, वो विकेट कीपर को कितना इंटरेस्ट है, कितना पैशन है, कितना एंजॉय करता है, उसके ऊपर ये विकेट कीपर बनेगा। Yes, absolutely, sir. So wonderfully explained कि आप ये सारे ड्रिल्स कितने आसानी से कर सकते हो। मतलब इन दीज टाइम्स वेयर देयर इज अ लॉकडाउन, आप अभी तो बारिश भी शुरू हो जाएगी, आप बाहर नहीं जा सकते हैं, ग्राउंड पे एक्सेस नहीं मिलेगा, तो भी आप घर पे, आपके कॉलोनी में, आपके एरिया में जहाँ पे दीवार है, जहाँ पे रोप है, वहां पे ये सारे ड्रिल्स कर सकते हो। आई होप ऑल द पार्टिसिपेंट्स आर लिसनिंग टू दिस एंड आई होप दैट दे आर जॉटिंग डाउन ऑल दीज पॉइंट्स। सुलक्षण कुलकर्णी सर इतने अच्छे से हमें बता रहे हैं, एंड दैट टू इन सच अ सिंपल लैंग्वेज। मतलब ये अगर आप इतने आसानी से, जैसे सर एक्सप्लेन कर रहे हैं, सर एनीथिंग दैट यू वुड लाइक टू स्पीक ऑन दिस स्लाइड दैट इज देयर ऑन आवर स्क्रीन सर? यस यस, ये की पॉइंट्स है, ये विकेट कीपर के की पॉइंट्स है। देखो यहाँ पे पूरा लिखा है कि ये इंग्लैंड का विकेट कीपर है, जो अभी आईपीएल का बहुत फेमस प्लेयर। कौन बता सकते हो कौन है? या ओके, यस, या सो इसमें उसके आईज लेवल है, आईज आपको लेवल रखने हैं। हेड हेड आपको बॉल हेड एंड आई लेवल है, बॉल आप इन फ्रंट ऑफ योर आईज आप कैच करने वाले हो। और रिसीव, उसको बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं हम लोग, जो ये होता है ना, क्या बोलते हैं इसको, शॉक एप्स। ये जो कलेक्ट कर रहा है, ये इन फ्रंट ऑफ आईज, इसको बोलते हैं हम लोग इन फ्रंट ऑफ आईज, अराउंड 1 फीट to 2 फीट बॉल कलेक्ट करके आपको पीछे लेना है, रिसीव करना है। तो उसको बोलते हैं हम लोग शॉक एप्स, कार की या बाइक की शॉक एप्स। तो आपको बॉल का इंपैक्ट नहीं होता है। देन आपको बॉल देखना है लास्ट तक। पोस्चर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, पोस्चर। उसका पोस्चर देखना, उसके फीट, उसके थाइज, उसके नीज, उसके हेड पोजीशन एक ही पोजीशन में, सेंटर ऑफ एवरीथिंग। उसके नोज के सेंटर में बॉल कलेक्ट कर रहा है। दिस इज अ परफेक्ट पोस्चर। एंड कोई भी बॉल को, किसी भी बॉल को आपका पोस्चर जरूरी है। ये पोस्चर आप ऐसे करना चाहिए, ये बैलेंस पोस्चर है। यस। तो ये पोस्चर एक विकेट कीपर के लिए एक बेसिक होना चाहिए, एक्सेलेंट पोस्चर। या प्रसन्ना? यस यस सर, आप अभी पोस्चर के बारे में बात कर रहे थे, जैसे अभी हमारे पास बहुत सारे रिप्लाईज आए सर, सो आई थिंक वी शुड बी रियली हैप्पी। जब आपने पूछा कि ये विकेट कीपर कौन है, तो वी गॉट अबाउट 6 or 7 रिप्लाई सेइंग दैट ही इज जॉस बटलर। सो रियली वेल डन टू एवरीवन जो इतने इन्वॉल्वमेंट के साथ सुन रहे हैं। सर पोस्चर के बारे में आपको पूछना चाहूंगा कि अगर पोस्चर सही है तो परफॉर्मेंस भी सही होता है और इंजरी भी कम होती है, सही है सर? करेक्ट, बिल्कुल बिल्कुल है, वेल सेड। क्योंकि पोस्चर पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। लाइक बैट्समैन का पोस्चर, बॉलर का पोस्चर, फील्डर का पोस्चर, हर प्लेयर का पोस्चर होता है। पोस्चर यानी आप वेल बैलेंस्ड हो। करेक्ट। यू आर इन टोटल कंट्रोल, उसको बोलते हैं। करेक्ट। कि आपका सब कुछ पोस्चर, सब कुछ है, बैलेंस्ड है। नहीं तो कहां कहां पे इम्बैलेंस होता है, तो इम्बैलेंस होगा तो आपका पोस्चर भी इम्बैलेंस होगा। यस। तो ये बेसिकली आप बिगिनर्स को देखोगे, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे, जैसे जैसे हार्ड प्रैक्टिस करते जाओगे, फ्रॉम लो टू अप, व्हाट इज विकेट कीपर, स्पेशली ऑन इंडियन विकेट्स वेयर द बॉल इज कीपिंग लो, यू हैव टू कीप लो, यू हैव टू स्टे लो, एंड इन ऑन इंडियन विकेट्स यू हैव टू राइज विद द बॉल। Correct. Rise with the ball. See, for all participants, it's so important. Rise with the ball. Yes, sir. विद द बॉल, विद द बाउंस, क्योंकि बॉल बहुत लो रहता है इंडियन विकेट। उसको Yes. हम लोग जोकिंगली बोलते हैं। अभी प्रसाद सर को थोड़ा ये लगेगा, प्रसाद सर को थोड़ा ये होगा कि यार ये हमारा इंडिया का विकेट हमारे लिए नहीं है, तो उसके लिए जोक हम लोग बोलते हैं कि इंडियन क्रिकेट घुटने के नीचे है। Good. सर एम आई राइट? घुटने के नीचे, अभी तो एंकल पे आ गया। हाँ, तो प्रसन्न घसरपट्टी बॉल, घसरपट्टी बॉल। घसरपट्टी, यस। तो प्रसन्न, हमने इतने मैचेस खेले हैं कि डे 1 को, 4 डे मैच में डे 1 को घुटने तक आता है बॉल, और डे 4 को एंकल पे आता है। तो विकेट कीपर का क्या हाल होता होगा उसमें। तो इसके लिए आपको प्रिपेयर रहना है, ऐसे भी विकेट पे विकेट कीपिंग करना, और उसमें ब्रिलियंट विकेट कीपिंग करना, ये एक आर्ट है।
तो आप राइज विद द बॉल, क्योंकि राइज नहीं हुए और आप सीधा राइज हो गए और बॉल नीचे आया तो नीचे से बॉल जाएगा। करेक्ट करेक्ट। तो इसके लिए ऑन इंडियन विकेट्स राइज विद द बॉल, ऑन बाउंसी विकेट यू कैन गेट अप स्लाइटली अर्ली, यस क्योंकि बॉल बाउंस होता है, एजेस होते हैं, फ्लाई होते हैं एजेस, तो वहां पे आपको जल्दी उठना है। यस नहीं सर, आपने कितने अच्छे से बताया कि राइज विद द बॉल, और एंड यू एक्सप्लेन्ड द टेक्निक्स, आपने ड्रिल्स के बारे में बात की। और सर आज जो T20 क्रिकेट है, जो नॉर्मल क्रिकेट या अपना दिव्यांग का क्रिकेट, इसमें जो सारे विकेट कीपर्स हैं वो बैटिंग भी अच्छी करते हैं या बैटिंग करना चाहते हैं। आपने तो पूरा आपका करियर एक एस्टैब्लिश्ड बैट्समैन विकेट कीपर के इस पे खेला। तो आज के जो विकेट कीपर्स है, खासकर हमारे जो दिव्यांग क्रिकेट खेलना चाहते हैं, इंडिया के लिए खेलना चाहते हैं, उनको एज अ कोच, एज एन एक्सपीरियंस प्लेयर सर आप कैसे बताएंगे हाउ टू बैलेंस बैटिंग एंड विकेट कीपिंग सर? देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, लास्ट ईयर का वर्ल्ड कप मैच, लास्ट ईयर वर्ल्ड कप के लिए एक प्लेयर, एक विकेट कीपर हमारा खेला, इनिशियल मैचेस खेला, हाँ, फिर वो ड्रॉप हुआ, हाँ, फिर हमारा दूसरा विकेट कीपर खेला, हाँ, और फिर सेमीफाइनल फाइनल में फिर ओरिजिनल विकेट कीपर खेला। ओ, रीजन ये था कि इंग्लिश कंडीशन, हमारे क्वालिटी स्पिनर्स, क्वालिटी फास्ट बॉलर्स, लेकिन उसमें हमारे बैटिंग स्ट्रेंथ एंड हमारे शार्प शूटर्स, 4 तो शार्प शूटर थे हमारे ऑलराउंडर, करेक्ट, और प्लस 4 बैट्समैन, सो 8 ओवरऑल हो गया। अब ये होने के बाद वहां पे हमको जेन्युइन विकेट कीपर चाहिए था, वहां पे वो नहीं चाहिए था कि थोड़ा ये और थोड़ा वो। और वहां पे क्रूशियल मैच में, जैसे वर्ल्ड कप जैसे मैच में, एक आधा कैच या रन आउट या स्टंपिंग अगर जाता है तो मैच जा सकता है। करेक्ट, सो उसके लिए हमने प्रिफर किया कि हमारा जो जेन्युइन विकेट कीपर है उसको हम लोग खिलाएंगे, करेक्ट, और हमने उसको जेन्युइन विकेट कीपर को खिलाया। उसने ब्रिलियंट विकेट कीपिंग किया और बहुत बड़ा रोल प्ले किया एज अ विकेट कीपर। करेक्ट, सो ये होता है आपका सिलेक्शन का चॉइस। एब्सोल्युटली, लेकिन since we are playing a T20 match, in the future Correct. also they are going to play lot of T20s, T20. World Cups and other tournaments. Correct. they have to focus on batting also, करेक्ट, because wicket keeping ये नहीं चलेगा, सिर्फ विकेट कीपिंग नहीं चलेगा, आगे जाके आपको बैटिंग भी उतना ही इक्वली है। एग्जांपल अगेन, ऋषभ पंत is struggling in wicket keeping. He may be a good hitter, बट वो जब बैटिंग को जाता है लास्ट को, तो उसको बहुत कम टाइम रहता है उसके पास, देन विकेट कीपिंग आता है। देन विकेट कीपिंग में वो बराबर विकेट कीपिंग नहीं करता है, सही नहीं करता है, इसके लिए वो टीम के बाहर है। एंड आज दूसरा विकेट कीपर है केएल राहुल। केएल राहुल भी उससे स्लाइड थोड़ा बेटर होगा, लेकिन उतना ही होगा, बट ही इज अ ब्रिलियंट बैट्समैन, ही इज अ टॉप ऑर्डर बैट्समैन, टॉप 3 बैट्समैन। करेक्ट, तो उसका बैटिंग का जो इंपैक्ट है, ही इज अ मैच विनर। एंड विकेट कीपिंग भी अभी तक उसने कुछ गड़बड़ नहीं किया है, अभी तक गड़बड़ नहीं किया, मैं बोल रहा हूं, गड़बड़ कर सकता है, ही इज नॉट अ धोनी। लेकिन बैट्समैन और विकेट कीपर आज के तारीख में होना बहुत जरूरी है। लेकिन फिर भी मैं बोलूंगा कि आप पहला प्रायोरिटी टॉप विकेट कीपर, जेन्युइन विकेट कीपर पे होना चाहिए, उसके बाद बैट्समैन। एब्सोल्युटली, या so nicely explained by सुलक्षण कुलकर्णी सर। आई थिंक ऑल द पार्टिसिपेंट जो सुन रहे हैं, जो हमारे पास उन्होंने क्वेश्चंस भेजे हैं कि विकेट कीपर भी है, बैट्समैन भी है, तो सुलू सर ने कितना एक्सीलेंट एक्सप्लेनेशन एंड वंडरफुल वर्ड्स दैट ही हैज यूज्ड कि both techniques are important. You have to be a good batsman and a good wicket keeper as well, but primarily you have to be a good wicket keeper. That is your primary role in a cricket team which you should focus on. So sir, आज हमने विकेट कीपिंग के बारे में डिस्कस किया, बैटिंग के बारे में डिस्कस किया, ये तो इतने सारे बहुत भी चीजें हम बात कर सकते हैं, बट सर आर वी ओके टू टेक अ फ्यू क्वेश्चंस जो हमारे पास हैं? शुड वी टेक अ फ्यू? नो प्रॉब्लम, हैव अ फ्यू मिनट्स टू गो। जो हमारे पास क्वेश्चंस आए थे, ईमेल से आए थे, दीपक जादव सर ने जो लिए थे, वी हैव गॉट लॉट ऑफ क्वेश्चंस, और उसमें से हमने कुछ स्क्रीन किए हैं, उसमें से कुछ हमने फिल्टर किए हैं, और वो हम एक 3-4 क्वेश्चंस लेंगे, 3-4 क्वेश्चंस फॉर बैटिंग, 3-4 क्वेश्चंस फॉर विकेट कीपिंग। सो लेट्स स्टार्ट विद बैटिंग सर। एक क्वेश्चन ऐसे आया है सर कि T20 क्रिकेट में आज जहां पे जो हम टीवी पे देखते हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट देखते हैं, अभी दिव्यांग क्रिकेट भी रिकॉग्निशन में आ रहा है सर, कितना इंपॉर्टेंट है द रोल ऑफ टेक्निक फॉर अ बैट्समैन इन अ T20 फॉर्मेट? आपके पास बेसिक टेक्निक होना जरूरी है, तो आप अच्छे लेवल पे सर्वाइव हो सकते हो।
आपके पास अगर टेक्निक नहीं हो तो आप कभी कभी आप परफॉर्म करोगे, लेकिन चांसेस बहुत कम है कि आप ऊपर के लेवल पे स्ट्रगल करोगे। ओके। मान लो एक फास्ट बॉलर और स्पिनर के लिए एक जेन्युइन ओपनिंग स्पेल चल रहा है, जिसका इन स्विंग है, एक इन स्विंग बॉलर है, और आपके पास टेक्निक नहीं है, और आप खेलते जा रहे हो, शॉट्स खेलते जा रहे हो, एक इन स्विंग अच्छा बॉल आ गया, मार दिया आपने, बड़ा गैप, बैट एंड पैड के बीच में गैप है, एंड यू आर आउट, आपका इनिंग खत्म हो गया। करेक्ट। प्लस वो आपको दिखने के लिए भी वो जो खराब दिखता है कि यार इसके पास टेक्निक नहीं है, ये फॉल्टी टेक्निक से खेल रहा है, तब आप एक्सपोज हो जाते हो और लोग बोलते हैं यार इसके पास टेक्निक नहीं है। तो तभी अपने को याद आता है कि यार टेक्निक की जरूरत है। करेक्ट। बराबर। करेक्ट। वैसे ही स्पिनर को, कोई बैट्समैन फास्ट बॉलर को कंफर्टेबल है, देन स्पिनर को आने के बाद स्ट्रगल करते हैं। जब तक फास्ट बॉलर चला रहा है, स्पिनर आ गया तो पहले दूसरे बॉल में इसलिए वो कंफ्यूज हो जाता है, वो डर जाता है, अरे बाप रे अब क्या होगा, अब मुझे एक्सपोज होने का डर है। तो स्पिनर को भी टेक्निक लगता है। तो ये टेक्निक होना जरूरी है, भले वो T20 खेलता हो। अफगानिस्तान का मैच, अगर विक्रांत केनी अगर वो इनिंग नहीं खेलता, अगर विक्रांत केनी वो 40 नॉट आउट वाला इनिंग नहीं खेलता, तो हम शायद स्ट्रगल कर सकते थे, हम जीतते थे मैच, लेकिन हम शायद स्ट्रगल करते कि 4 पे 4 विकेट, उनका क्वालिटी बॉलिंग, एंड मे बी मैच 40 फॉर 6, मे बी 60 फॉर 8, 70 फॉर 9, एंड मे बी इधर उधर ऐसा हो सकता था। लेकिन उस टाइम उस स्विंगिंग विकेट पे, उस स्विंगिंग कंडीशन पे विक्रांत केनी ने जो इनिंग खेला, वो टिपिकल मुंबई का खड़ूस इनिंग एंड टेक्निकली साउंड। रीजन था विक्रांत केनी के पास ग्रेट टेक्निक था। ग्रेट टेक्निक होने की वजह से उसने वो सर्वाइव किया, वो स्पेल सर्वाइव किया फास्ट बॉलर का, दोनों का बेस्ट स्पेल वो निकाल दिया 4-4 ओवर का, फिर बॉलर आया, फिर उसने खेला, एंड उसके लिए हम मैच जीते। ये डिफरेंस है टेक्निक होना। Yes, absolutely, sir. So nicely explained, where your team is struggling at 4 for 4, but you need a batsman with solid technique to negate a good spell of a bowler. And when you have good batsmen with good technique, then that helps the team to reach safe shores. Sir, another question that has come to us is that how do I get better at my batting? So we have a question saying that okay, I score runs, I practice, but I want to get better. मुझे और अच्छा होना है, और मेरे strokes बढ़ाने हैं, और मुझे runs करने हैं। जैसे आपने बताया, what is batting? Batting is scoring runs. So how do I get better? What practice should I do to get better, to be in that form of my life? Okay, इसमें पहला है तो वो जब नेट में प्रैक्टिस करता है, नेट में एक अपना प्लान बनाओ, मैच सिमुलेशन। नेट में नेट में एक प्लान बनाओ कि मैं ईच बॉलर को, सपोज 5 बॉलर्स दे आर बॉलिंग, 3 फास्ट बॉलर एंड 2 स्पिनर्स, लेफ्ट आर्म स्पिनर और ऑफ स्पिनर और 5 बॉलर्स। इसको हर बॉलर को आप प्लान बनाओ कि ये फास्ट बॉलर को इसका स्ट्रेंथ, ओके आउट स्विंगर है तो ये फील्ड है T20 का फील्ड, थर्ड मैन, मे बी डीप पॉइंट, गली, कवर, मिड ऑफ, ये पॉइंट है, और इसको मैं कैसे शॉट्स खेलूंगा। सपोज इन स्विंग बॉलर है तो इन स्विंग बॉलर के लिए जो फील्ड होता है जनरली 4 ऑन द ऑन होता है, 5 ऑफ में होगा, मिड ऑन होगा, मिड विकेट होगा, डीप स्क्वायर लेग होगा, फाइन लेग होगा मे बी। तो इसके लिए क्या फील्ड होगा, ओके इसने बॉल डाला, मैंने यहाँ पे किया 1 रन या 2 रन, अगर शॉट डालता है तो मैंने पुल किया, वहां पे 4 रन। स्पिनर आ गया, लेफ्ट आर्म स्पिनर आ गया, तो अगेन 5-4 ऑन द ऑफ साइड, T20 की टिपिकल फील्ड होती है, शॉर्ट फाइन लेग एंड 3 ऑन द बाउंड्री लाइन, 5 ऑन द ऑफ साइड विद लॉन्ग ऑफ, डीप कवर एंड 2 आगे। तो इसके लिए मैंने क्या शॉट्स खेला, ये लेफ्ट आर्म स्पिनर को ये शॉट बिटवीन द प्लेयर्स, गैप, ये आप प्रैक्टिस में इसकी प्रैक्टिस करो। करेक्ट, एब्सोल्युटली, नंबर 1। यस। देन मैच में जाने के बाद सिमिलर सिचुएशन को लो जो मैंने प्रैक्टिस में किया था। करेक्ट, क्योंकि मैच में भी आपको उसी टाइप के बॉलर मिलते हैं, लेफ्ट आर्म स्पिनर, ऑफ स्पिनर, आउट स्विंगर, इन स्विंगर। तो आपने जो प्रैक्टिस किया था वही आपको मैच में आने वाले हैं, वही स्ट्रेटेजी आप अप्लाई कर सकते हो। करेक्ट, राइट। एंड देन आप लास्ट का एक है जो इम्प्रोवाइजेशन, अभी आपने बोला मैं और शॉट्स कैसे खेलूं और कैसे डेवलप करूं, तो ये जो इम्प्रोवाइजेशन का शॉट्स है ये आप लास्ट में रखो कि आपका इम्प्रोवाइजेशन का टाइम है। ये शॉट्स खेलता हूं मैं, कुछ लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन, इनसाइड आउट या स्वीप शॉट, हॉरिजॉन्टल शॉट्स, ये आप स्पेशल प्रैक्टिस करो उसी शॉट के लिए। एब्सोल्युटली। एंड नंबर ऑफ बॉल्स आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे, मान लो नेट्स में आपने 100 बॉल का पुल शॉट का प्रैक्टिस किया, या स्वीप शॉट का किया, या लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ पे 6 मारने का आपने प्रैक्टिस किया, तो ये डेली प्रैक्टिस करके आपकी एक हैबिट हो जाएगी। कोई भी चीज प्रसन्ना जो आप नहीं करते हो वो मैच में अगर करोगे तो आपको फेल्योर ही आने वाला है।
Absolutely. So well said. जो आप प्रैक्टिस करोगे उसी को सक्सेस मिलेगा मैच में। Correct. जो नहीं करोगे, जिंदगी में आपने पेडल स्वीप या ये खेला नहीं, शॉट खेला नहीं और मैच में खेलोगे तो आप फेल हो जाओगे। तो उसकी प्रैक्टिस करनी जरूरी है। तो इस प्लेयर को, इस टाइप के प्लेयर को मेरा मैसेज है कि आप नेट्स में ऐसी प्रैक्टिस कीजिए, ये प्रैक्टिस को लेके आप मैच में आइए और मैच में आप वो कोशिश कीजिए कि ये कर सकते हैं क्या, आपको सक्सेस मिल सकता है। Yes, absolutely. As they say, big authors always say, if you want to make a mistake, make it in the nets, not in the match, so that you can Correct. improve. So nicely explained. Sir, एक क्वेश्चन आपसे पूछना था, जो बेसिक क्वेश्चंस हमारे पास आए थे कि आप बैटिंग के लिए जब भी कोई बैट्समैन जाता है तो कभी कभी बोलते हैं कि फुटवर्क नहीं हो रहा है, बॉडी मूवमेंट नहीं हो रहा है, बट यहाँ पे व्हेन यू आर लुकिंग एट दिव्यांग क्रिकेटर्स, इट कुड बी अ डिफॉर्मिटी आल्सो। तो उनको आप टेक्निक के बारे में कैसा बोलते हैं, फुटवर्क के बारे में, व्हाट डू यू एग्जैक्टली टेल देम? नहीं, बेसिकली T20 में ये जो फुटवर्क का जो है, फुटवर्क बेसिकली कब आएगा, खास करके फर्स्ट 6 ओवर में। करेक्ट, बॉल इज न्यू एंड हाँ, बॉल इज न्यू एंड टॉप ऑर्डर बैट्समैन के लिए। करेक्ट। मिडिल ऑर्डर एंड लोअर ऑर्डर के लिए ना ही स्लिप रहते हैं, ना ही कोई अटैकिंग फील्ड होता है। करेक्ट। आपको फुटवर्क का इतना बड़ा प्रॉब्लम आता नहीं है लोअर ऑर्डर। यस यस। नंबर 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि बॉल सिर्फ 20 ओवर्स का ही है, तो बॉल न्यू है, हार्ड है, तो यहाँ पे T20 का विकेट भी बेटर मिलता है। फ्लैट विकेट रहते हैं, जनरली फ्लैट विकेट रहते हैं, तो आपको बड़ा कुछ फुटवर्क का प्रॉब्लम नहीं, आपको बॉल मीट करना है। यस, मीट करना है। सिर्फ न्यू बॉल को आउट स्विंग हो सकता है, इन स्विंग हो सकता है, तो इन स्विंग के लिए मे बी किसी का डिफॉर्मिटी है, जैसा मैंने बोला वासिम का फ्रंट फुट का डिफॉर्मिटी था, तो उसको इन स्विंग के लिए प्रॉब्लम हो सकता है। करेक्ट। तो ये बैट्समैन के लिए आपको थोड़ा एडजस्ट करना है। जो ओपनिंग बैट्समैन है और जहां पे स्विंग को प्रॉब्लम है, उनको थोड़ा सा क्लोज टू द बॉडी खेल के रादर देन आगे जाना। ये बैट का जो फेस है, ये आगे जनरली T20 में या वनडे में शॉर्ट फॉर्मेट में वाइड बॉल को क्या होता है कि हम ज्यादा जोर से खेलने जाते हैं, हार्ड खेलते हैं। जब हार्ड खेलते हैं तो आपका बैट आगे जाता है, और आगे गया और वहां पे स्विंग को चांस है कि बैट एंड पैड गैप में से हो सकता है। करेक्ट करेक्ट। वही सिर्फ 6 ओवर्स है, आपको थोड़ा क्लोज टू द बॉडी खेलना है और नजदीक खेलना है। वो छोड़ के मुझे कुछ लगता नहीं है कि बीच वाले ओवर्स में किसी को फुटवर्क का प्रॉब्लम नहीं है। तो फुटवर्क का इश्यू कोई बड़ा मत करो। Yes, absolutely. So nicely said. Ki don't worry about that. Just focus on your game, and as Sulukshan Kulkarni sir always says, that play to your strength. So let's go to a few questions about wicket keeping. We still have some time. Wicket keeping में एक question ऐसा आया है कि I face problems while collecting the ball on the leg side. जो it could be a problem for normal wicket keepers also, but leg side collection में थोड़ा problem आ रहा है या problem होता है, तो उसके लिए आप क्या suggest करेंगे सर? वेरी गुड क्वेश्चन अगेन प्रसन्ना, ब्रिलियंट क्वेश्चन। सबसे डिफिकल्ट ये पार्ट है विकेट कीपर के लिए लेग साइड का बॉल कलेक्ट करना, और उसमें 2 टाइप के होते हैं, एक शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल एंड एक गुड लेंथ बॉल और यॉर्कर लेंथ बॉल। दैट इज द मोस्ट डिफिकल्ट बॉल टू कलेक्ट, लेग साइड या ऑफ साइड। ऑफ साइड में आपको विजन क्लियर है, आपको दिखता है, आप कलेक्ट करते हो, लेकिन लेग साइड में बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि ये ब्लाइंड स्पॉट आता है बैट्समैन का। करेक्ट। इसके लिए एक प्रैक्टिस कर सकते हैं हम लोग नेट्स में, या हम लोग रूम पे भी अभी ये कोरोना वायरस के इसमें हम लोग कर सकते हैं। एक आप चेयर लगा दो वहां पे, या एक स्टूल लगा दो जो ये बैट्समैन है आपका, और उसको सामने वाले को थ्रो डाउन करने को बोलो और उसको लेग साइड में डालने को बोलो। करेक्ट। तो वो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। दैट इज अ ब्लाइंड स्पॉट, दिस इज अ ब्लाइंड स्पॉट, और ये आप प्रैक्टिस करो लेग साइड की। अब लेग साइड वाला बॉल जो कलेक्ट करने को डिफिकल्ट होता है, दैट इज द डिफरेंस जिसका एंटीसिपेशन स्लो है। द डिफरेंस बिटवीन लेग साइड का बॉल कलेक्ट करना ये कि एंटीसिपेशन जिसका स्लो है वो उसको प्रॉब्लम होता है। अब ये अच्छे विकेट कीपर कौन होते हैं जिसका एंटीसिपेशन अच्छा होता है। तो एंटीसिपेशन यानी क्या है कि बॉल रिलीज करने के बाद यू हैव टू वॉच द रिलीज। रिलीज के बाद आपने अगर देख लिया कि बॉल मिडल लेग स्टंप पे जा रहा है, बॉल ऑफकोर्स से लेग साइड के बाहर जाने वाला है, तो आपको रिलीज में ही आपको निकलना है वहां पे लेग स्टंप के बाहर। तो आपका आधा काम हो गया। करेक्ट। यानी आपने रिलीज पे ही आपने ब्लाइंड स्पॉट को आपने क्रॉस किया और आप उस तरफ गए, यहाँ पे आ गए, इधर से यहाँ पे आ गए, एंड आपको वो स्प्लिट सेकंड एक्स्ट्रा मिला आपको बॉल देखने के लिए, और फिर आप कलेक्ट करते हो। जो बॉल एयर में दिखते नहीं है, एंटिसिपेट नहीं करते, उनका लेट रिएक्ट होता है, इसके लिए प्रॉब्लम होता है। सो ये प्रैक्टिस कर सकते हैं।
यस एब्सोल्युटली, जैसे आपने बताया कि ये जो ड्रिल्स है ये कैसे करना है, ये आपने अच्छे बताया। कि एक और सवाल पूछना चाहूंगा जो मैं मॉरल ले रहा हूं कि जो क्वेश्चंस आए हैं, जैसे कंडीशंस होते हैं, हमने बैटिंग के बारे में बात की कि बैटिंग डिफरेंट होता है कंडीशंस के हिसाब से, पर विकेट कीपिंग भी कितना इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली इन इंग्लैंड जहां पे बॉल पिच होने के बाद बैट्समैन को क्रॉस करने के बाद भी मूव होता है। तो हाउ डज अ विकेट कीपर हैव टू एडजस्ट एंड अडेप्ट टू दीज डिफरेंट कंडीशंस प्लेइंग अक्रॉस द वर्ल्ड, स्पेशली हमारे दिव्यांग क्रिकेट टीम अभी सब जगह पे खेलेगी, तो उन विकेट कीपर्स को आप कैसे क्या सजेशन दोगे टू अडेप्ट टू दीज चैलेंजिंग कंडीशंस? एक्सेलेंट क्वेश्चन अगेन प्रसन्ना, क्योंकि हम लोग बोलते हैं कि फास्ट बॉलर को कीपिंग करना बहुत इजी है, ऐसे बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इंडिया में फास्ट बॉलर को कीपिंग करना कंपेयर टू अदर प्लेसेस इजी है, क्योंकि इंडिया में वो लैटरल मूवमेंट इतना होता नहीं है, विकेट के पीछे बॉल इतना मूवमेंट होता नहीं है, बॉल स्वर होता नहीं है, इसके लिए बॉल सीधा आता है तो हम कलेक्ट कर सकते हैं। इंडिया में बहुत बार हम लोग विकेट कीपर ब्लाइंडली कलेक्ट करते हैं और ऐसे भी करते हैं। हाँ, अभी इसका मैं आपको एक जोक ने जो हकीकत हुआ था, ये मैं इंसिडेंट बताता हूँ आपको। ओके इंग्लैंड में ये है, इंग्लैंड में क्या होता है कि बॉल विकेट के पीछे बॉल स्वर होता है और वो लास्ट मोमेंट तक स्वर होता है। आपके आपके 2 मीटर, 1-2 मीटर के वहां पे भी बॉल स्वर होता है, और आपको लगा कि आपने बॉल तो अभी सीधा आ गया आराम से, और बिना आपने देखे ऐसे अगर बॉल देने लगे तो बॉल स्वर होके आपको यहाँ से बॉल से निकल जाता है और 4 रन जाता है। तो वो सीन इतना खराब दिख सकता है इंटरनेशनल में। तो एक मैच हुआ था, इंडिया का एक विकेट कीपर था, इंडिया का टेस्ट विकेट कीपर, टेस्ट मैच चल रहा है, एंड जहीर खान के बॉलिंग पे, आप ये कल बोल सकते हो प्रोग्राम में, मैंने देखा था ये इंसिडेंट। जहीर खान के बॉलिंग पे पार्थिव पटेल, अच्छा, फर्स्ट स्लिप सचिन तेंदुलकर, सेकंड स्लिप राहुल द्रविड़, थर्ड स्लिप गांगुली, गली वीवीएस लक्ष्मण। फर्स्ट बॉल वहां पे फर्स्ट ओवर में बॉल आया, पार्थिव पटेल बॉल कलेक्ट करने लगा कि उसको लगा कि बॉल इजी आ रहा है, वो ऐसे कलेक्ट करके स्लिप में देने गया तो बॉल स्वर होके बॉल नो टच बाउंड्री 4। तो वो सीन जो था, वो सीन वो फर्स्ट स्लिप सेकंड स्लिप थर्ड स्लिप ऐसे करके थे सब लोग कि ये क्या है। इसका मतलब है क्योंकि आपको यू हैव टू वॉच द बॉल टिल द एंड। इंग्लैंड में आप चांस नहीं ले सकते हो, यू हैव टू वॉच द बॉल टिल द एंड। वहां पे बॉल बहुत मूव होता है, स्वर होता है। देन बेस्ट टेक्निक क्या है इंग्लैंड में? इंग्लैंड में बेस्ट टेक्निक है टेक द बॉल इन फ्रंट ऑफ योर आईज एंड टेक द बॉल एट सेंटर। सेंटर इज द सेफेस्ट पोजीशन। दो एडवांटेज, एक इन फ्रंट ऑफ योर आईज, यू कैन कीप योर आईज ऑन द बॉल, एंड द सेकंड लाइन इज योर बॉडी। सेकंड लाइन इज द बॉडी। सो ये सबसे सेफेस्ट टेक्निक है इंग्लैंड में कीपिंग करने का, तो ये आप कर सकते हो। Yes, absolutely. और इंडिया में तो आपने बताया कि rise with the ball, so different techniques and different guidelines that you have given to all our players. Sir, just to wind up कि अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, शायद ये खुलेगा अभी थोड़े टाइम में, बारिश भी अभी आने वाली है, ऑफ सीजन अभी होगा next 2-3 months before we get back to cricket in say September end October. तो ये जो 3-4 महीने हैं हमारे क्रिकेटर्स के पास, दिव्यांग क्रिकेटर्स जो है लॉकडाउन में, ऑफ सीजन में, what do you think should be the way that they should train एंड प्रैक्टिस? क्या आप सजेस्ट करोगे? बैट्समैन होगा, विकेट कीपर होगा, बॉलर होगा, क्रिकेटर्स है, तो ये फेज में आप क्या सजेस्ट करोगे सर, एज अ कोच एंड एज एन एक्सपीरियंस प्रोफेशनल, कि कैसे ट्रेनिंग और कैसे प्रैक्टिस करनी चाहिए? आपको 24 घंटे निकालने हैं। आपको 24 घंटे जो निकालने हैं, एक दिन निकालना है। इस 3 महीने में ऑलरेडी 2.5 मंथ्स कोरोना वायरस में हो गए, घर में बैठ के आदमी का दिमाग काम नहीं करता है। सो आपको फिजिकल के साथ साथ आपको मेंटल पे भी वर्क करना है, आपको रिलैक्स भी रहना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बोलूंगा, आप हैप्पी रहो, जिंदगी में हैप्पी रहो। सबसे पहली बात, अगर आप हैप्पी रहोगे तो आगे का सोचोगे। अगर हैप्पी नहीं है, आप उदास हो, आप अपसेट हो, मायूस हो, डिप्रेशन में हो, तो कोई जरूरत नहीं है। आप हैप्पी रहो। हैप्पी रहने के बाद आगे का सोचो क्या करना है। जो हम रेगुलर करते हैं, ड्रिल करते हैं, बैट्समैन, विकेट कीपर, स्पिनर, फास्ट बॉलर, जितना अवेलेबल रिसोर्स है उसमें आप करो। इसके बाद फिटनेस के लिए जिनके जिनके पास है, जहां पे आप बीच पे है तो बीच पे आप रनिंग कर सकते हो। अगर आपको इनकेस ग्राउंड मिला तो वहां पे रनिंग कर सकते हो, ये थोड़ा ओपन आउट होने के बाद। और ये फिटनेस करके आपको जहां पे जगह मिलेगा, जहां पे आपको मौका मिलेगा,
वहां पे आप सिर्फ थोड़ा प्रैक्टिस करते रहो बस, क्योंकि रस्टी आप नहीं होना चाहिए, आपका रस्टीनेस आना नहीं चाहिए, क्योंकि कुछ एक्टिविटी नहीं किया है और सडनली 3-4 महीने के बाद आप ग्राउंड पे आएंगे तो आपको काफी टाइम लगेगा ग्रूव में आने के लिए। तो इसके लिए अगर स्पिनर है तो स्पिनर का वो जो बॉल लेके आप जो सीम पोजीशन है उस सीम के साथ खेलते रहो, जस्ट बॉल फील ले लो। अगर फास्ट बॉलर है तो फास्ट बॉलर का रिस्ट पोजीशन पे आप वर्क कर सकते हो, थोड़ा रिस्ट पे वर्क करो। इतना भी वर्क किया, बैट्समैन ड्रिल किया आपने मिरर के सामने, शैडो प्रैक्टिस किया, विकेट कीपर ने जो मैंने बताया जो भी ड्रिल्स है ये आप करते रहेंगे तो आपका अच्छा रहेगा। आप टच में रहोगे, आप मेंटली टच में रहोगे और आप चिंता नहीं करना, जस्ट हैप्पी रहना। मेरा मैसेज यही है कि क्रिकेट से भी ज्यादा हैप्पी रहो आप मेंटली, जब क्रिकेट आएगा तो अपने आप आएगा। Oh, so well said. Be happy, be in a good frame of mind, be in a good state of mind. And if you're that, then I think things will follow. Thank you so much, Sulakshan Kulkarni, sir. It was a pleasure and an honor talking to you. I hope all the participants enjoyed and they got to learn a lot. Thank you so much for sparing your time. But before we close, we also have with us Mr. Prasad Desai, Kashmira Wadekar, Deepak Jadhav, sir. Any closing words coming in from our team of AICAPC before we close down? ये ड्रेसिंग रूम की बातें, अभी फर्स्ट सेशन है तो ये हमें फीलर मिल रहा है कि आगे कैसे प्रोसीड होंगे। तो कई पार्टिसिपेंट्स यहाँ पर आए थे कि फोरम पे ध्यान देने की क्या होने वाला है। जैसे उनको पता चला कि ये हमारा सब्जेक्ट नहीं हो रहा है तो आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पार्टिसिपेंट्स गोइंग अवे फ्रॉम द इंटरेक्शन। मैं बोलता हूँ अगर आप विकेट कीपर या बैट्समैन नहीं भी होंगे, फास्ट बॉलर होंगे या लेफ्ट आर्म स्पिनर होंगे या ऑफ स्पिनर या लेग स्पिनर भी होंगे, तो आप ये सोचिए कि क्रिकेट सिर्फ अपने बॉलिंग बैटिंग या फिर अपने खुद की जो चीज होती है उस पर निर्भर नहीं होता है। तो ट्राई एंड अटेंड ऑल द सेशंस, बिकॉज कल अगर आप कप्तान हो जाओगे एक टीम का तो आपको विकेट कीपर के बारे में भी क्या चीजें बोलनी है वो जरूरी है जो आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। और जो भी है कि बैट्समैन में अगर आपका बैट्समैन 3 मैच फेल हो रहा है तो उसमें क्या गलती हो रही है तो आप कोच को नहीं पूछ सकते हो, कोच का काम तो करते रहेंगे, पर ऑन द फील्ड अगर आप उसके सामने बैटिंग कर रहे हो तो आप खुद ये बातें सुनकर उसको इम्प्रूव कर सकते हो। माय रिक्वेस्ट टू ऑल वुड बी सारे सेशंस अटेंड करो। ये मेरा 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 क्लास नहीं है ऐसे बोल के आप प्लीज डोंट मिस एनी सेशंस। अपना कोई सब्जेक्ट स्कूल में फेवरेट नहीं होता है, जैसे मेरा मैथ्स होता था पर पूरा दिन बैठना पड़ता है। हाँ, लेकिन वो अटेंड नहीं करूं और फेल हो गया तो घर पे डंडे पड़ेंगे, तो मजबूरी है, पर अटेंड करो। कल को उठ के आपको कप्तानी मिल गई तो आपको क्या करना है वो सिचुएशन में वो सीखना होगा। पता है क्लासरूम में बैठना बहुत डिफिकल्ट होता है, पर भाई इन दिनों में बाहर जाने नहीं मिल रहा है तो take all the knowledge which is imparted by your coaches. Prasanna is here doing a great job, who's keeping this whole thing lively. अच्छा कर रहे हैं। और भी कुछ होगा अगर next time अगर किसी को language का barrier आ रहा हो, if anybody is facing a problem with languages, somebody wants to speak in their regional languages, we will work out something and bring a person who can understand your language and your question in your own language, एंड देन वो प्रसन्ना जी को और सुलू सर को एक्सप्लेन कर पाएंगे और आपके क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। ये पहला सेशन है तो थोड़ा सा ट्रायल एंड एरर होगा, तो यू हैव टू जस्ट टेक एवरीथिंग सीरियसली। दैट्स ऑल। इट वाज अ फैंटास्टिक जॉब डन बाय सुलक्षण सर एंड प्रसन्ना। Amazing. Thank you so much. Thank you so much. Prasanna, quickly, yes. one question from me to Prasad sir. Sir, अगर आप बच्चों को ये भी समझा सकोगे कि ऑनलाइन सेशंस और जो ऑन ग्राउंड सेशंस होंगे इनके इसमें एक्सपेक्टेशन क्या है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को पर्सनलाइज कोचिंग ऑनलाइन चाहिए विच इज काइंड ऑफ इम्प्रैक्टिकल। तो सर थोड़ा सा प्रसाद सर आप थोड़ा सा ज्ञान उस पर भी दीजिए सर बच्चों को। ऑनलाइन कोचिंग पर्सनल करना, इसके लिए डेजिग्नेटेड वक्त लगेगा, वो पॉसिबल नहीं होगा। आप आपके वीडियोस भेजिए जो भी आपको बोलना है कि अगर आपका हाथ ठीक नहीं आ रहा है बॉलर का या फिर बैट्समैन को लग रहा है कि मेरी बैटिंग ठीक नहीं हो रही है, जो स्टिपुलेटेड एंगल्स आपको दिए हैं वो वीडियोस आप भेजें। लेकिन 1-to-1 कोचिंग ये धीरे धीरे आगे की तरफ होगा, लेकिन अभी इस हाल में 1-to-1 नहीं होगा। आपके कलेक्टिव क्वेश्चंस
पर्सनली अटेंड किए जाएंगे। नाम लेकर शायद नेक्स्ट 3-4 सेशन के बाद आपके नाम आएंगे, किसने सवाल पूछा है, और सुलू सर उसका जवाब देंगे। लेकिन अभी आपको थोड़ा सा अंदाजा आए कि क्या हो रहा है, वो आप फील ले लो, get the feel out of it, and then we'll again come back with your problem solved. That is not an issue. Thank you. Yes, Okay, Yes, sir. answer your question. I'll take that question to Sulu sir. Sir, आपने जो वीडियो रिकॉर्डिंग्स के बारे में कहा था कि we will do a fault rectification, तो सुलू सर उसके ऊपर भी आप अगर कुछ बच्चों को बता पाओगे तो। मेरा एक ऐसा था कि हम लोग एक अगर करते हैं इनका बैट्समैन, विकेट कीपर, बॉलर सबका, अगर कुछ इनको 1 मिनट का वीडियो अगर ये कर सकते, भेज सकते हैं अपने को, बैटिंग का, विकेट कीपिंग का, या इस सबका छोटा वीडियो, जिसमें हम लोग एक इनिशियल इस पे देख सकते हैं कि ओके क्या फॉल्ट है, कैसे है, क्या हम एडवाइस कर सकते हैं, उनको हम लोग टिप दे सकते हैं कि आप ऐसे कर सकते हो, या आपको कुछ प्रॉब्लम है तो हम लोग वो भी कर सकते हैं। तो वो एक वीडियो का हम लोग एक कर सकते हैं। मैंने आपको शायद भेजा भी है कि रूम में कैसे अपने घर में कैसे हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, विकेट कीपर, बैट्समैन, फील्डिंग, आपको मैंने कुछ वीडियोस भेजे हैं। तो वो वीडियोस अगर इनके साथ शेयर करें और किस टाइप के करने चाहिए और कैसे कर सकते हैं आप, ये बच्चे भी तो छोटे छोटे बच्चे हैं, अंडर 14 अंडर 16 के बच्चे हैं, वो लोग अगर खुद अपना ओके करते हैं तो आप लोग भी कर सकते हो। और उसका अगर वीडियो अगर भेजेंगे तो हम लोग को एक छोटा वीडियो, लेकिन बड़ा नहीं होना चाहिए, वो 1 मिनट का या 1.25 मिनट का वीडियो होना चाहिए। तो हम लोग उसको देख के, हम लोग स्क्रूटिनी करके, फिर हम लोग जैसे जैसे बॉलर बैट्समैन है उसको हम लोग देख सकते हैं, थोड़ा टाइम लेके हम लोग देख सकते हैं। थैंक यू सर। तो सभी खिलाड़ियों से मेरी दरख्वास्त है कि जो ये फेसबुक पोस्ट था हमारा, उसके ऊपर हमने सुलू सर ने जो सैंपल वीडियोस दिए थे उसके यूट्यूब लिंक भेजे हुए हैं, तो आपको एक अंदाजा आ जाएगा कि किस तरह के वीडियोस सुलू सर एक्सपेक्ट कर रहे हैं या रिव्यू स्टाफ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और एक गूगल ड्राइव का लिंक, एक आईडी दी हुई है जहां जिसके साथ आपको शेयर करनी है, तो वो आप सारे वीडियोस गूगल ड्राइव पे अपलोड कीजिए। और हमारी जो एक जीमेल की आईडी है divyangtrainingacademy@gmail.com, इसको आप एक्सेस दीजिए इस आपके फोल्डर का जहां पे आपने ये वीडियो शेयर किया है, तो वो हमें मिल जाएंगी और हम सुलू सर और बाकी के कोचिंग स्टाफ जो है और जो बाकी के क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ हम शेयर कर पाएंगे। थैंक यू। प्रसन्न, बैक टू यू। Yes, thank you so much. I think I hope सब participants ने इसका note किया होगा, and I hope you will send these videos across and आपके drive में डाल के will get access to them, and then the coaching staff and the team will rectify if there are any things to be rectified. But I think the first session that we had was a wonderful session of the Cricket Academy for Divyang. Once again, thank you so much to Sulakshan Kulkarni sir. Thank you so much to all the participants who tuned in, and we will be doing this every Saturday regularly. But don't forget to tune in tomorrow at 5 o'clock for Dressing Room Ki Baatein. We have former India cricketer, World Cup winning cricketer Zahir Khan with us, and it will be a great session. Expected that you all will join and be present for that wonderful session. Thank you so much once again, Sulakshan Kulkarni sir. Thank you so much to everyone. Let's say good evening and bye to everyone, and we meet tomorrow at 5 o'clock. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.